Merit Management Association is a professional non-profit body affiliated to All India Management Association with the aim to promote scientific management in industry and trade. It also undertakes training and consultancy to improve managerial effectiveness and competitiveness of its members. Merit Management Association, formed in 1966, is registered under the Societies Registration Act 1860. The founder members of the association were Sri K.N. Mohan, Managing Director, Mohan Meekins Breweries, Sri Sultan Singh Jain, Managing Director, Saru Smelting, and Sri R. Sahai, General Manager, Dorala Sugar Works. And a very grand and warm welcome to Mr. Atul Satya Kaushik ji. Atul ji, it's been a pleasure to have you with Merit Management Association. We have almost 60 participants who have joined in through Zoom. Along with the Merit Management Association members, we have few members from other LMS across India. We have members from Ghaziabad Management Association. We have few members from Haridwar Management Association, and along with few members joining in from different parts of India as well. Wow, wow. So I think so. With the digital platform, this is a plus point we have achieved to interact with other LMAs, including the nearbys, right? So it's a pleasure to have you here. Just to brief you about what is MMA and what does we do. MMA is a non-profit body affiliated to All India Management Association. Here at MMA, we continuously work toward improving the scientific management in business and encouraging youth by organizing various seminars, workshops, and recently using webinars. We strive to make changes in the nation, in the society, and that would be trustworthy and self-dependent. I'm the president of MMA. My name is Gaurav Kumar Jain, and I volunteer myself towards this non-profit association. I am in charge to ensure that the jobs are done in an ordinary and managed way. We try to bring change to the world, whether it's through changing their thought or the process or simply guiding them. So with this, I would not like to take much of your time. I would like to introduce our speaker for the day, Mr. Atul Satya Kaushik. And I've been given privilege to introduce such a great personality who follow his passion along with his career, everything. Even apart from being a diversified field, I have been gone through his profile, and I am so impressed that such a kind of passion he has for these dramas and plays. This is something extraordinary you need to have to fulfill all your goals. So I think so. It's being honored to have you with us, and people would definitely love to listen from you, your thoughts, and about the motivation and something that is coming back from our old history, our Grantha, Mahabharata, and Ramayana. That would be something interesting for everyone. So with this, I would like to hand off the platform to you. We once again a very warm and very grand welcome to Mr. Atul Satya Kaushik and all the people who have joined in to listen to you. Thank you, everyone. And back to you, Mr. Atul Satya Kaushik ji. Thank you. Thank you so much, Gaurav ji. Thank you so much, Merit Management Association. And thank you so much to all the people who have taken out time from this beautiful Saturday evening and listen to my talks. बहुत ही अच्छा दिन चुना है आज टीचर्स डे है। आज टीचर्स को याद करने का दिन है, अपने गुरुओं को याद करने का दिन है, उनके प्रति अपनी भावनाएं, अपना स्नेह, अपना आदर उनके सामने कहने का अपना दिन है। और टॉपिक भी बहुत अच्छा चुना है, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम रामायण एंड महाभारत, फ्रॉम इंडियन माइथोलॉजी। और ये चर्चा का विषय आज से नहीं, बहुत से सालों से रहा है कि क्या इंडियन माइथोलॉजी जो धर्म ग्रंथ है रामायण महाभारत, क्या उनसे भी मैनेजमेंट और लीडरशिप यानी नेतृत्व और प्रबंधन की कुछ शिक्षाएं मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती, इसके बारे में हम बहुत जल्दी से बात करेंगे। तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम रामायण एंड महाभारत। और क्योंकि आज
टीचर्स हैप्पी टीचर्स डे है, तो आज अपनी बात की शुरुआत में गुरु से करना चाहूंगा। गुरु क्या होता है, गुरु की क्या कहानियां हैं हमारे इन ग्रंथों में, और गुरु की क्या महत्ता होती है। ऐसा कहा जाता है मनीष जी की गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात महेश्वर। ये हम सब लोग बोलते हैं, हम गुरु को ब्रह्मा भी बोलते हैं, हम गुरु को विष्णु भी बोलते हैं, और हम गुरु को महेश्वर भी बोलते हैं। इसके पीछे का मतलब क्या है, और कैसे गुरु ब्रह्मा भी बनता है, कैसे गुरु विष्णु भी बनता है, और कैसे गुरु महेश्वरी बनता है, और कैसे गुरु को इन तीनों रूपों में स्वीकार करना चाहिए। सुजाता जी, पहले 2 रूप तो स्वीकार हो जाते हैं, लेकिन जब गुरु महेश्वर बन जाता है, जब गुरु महाकाल का रूप धारण कर लेता है, तब वो रूप सबको पसंद नहीं आता है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट रूप गुरु का वही होता है। क्यों गुरु को ब्रह्मा कहा जाता है? ब्रह्मा माने द क्रिएटर, जो सृजन करता है, जो उत्पत्ति करता है, जो नई चीजों को इस दुनिया में लेकर आता है, जो ब्रह्मा जी ने किया। जीवन को इस धरती पर ब्रह्मा लेकर आए। जिस प्रकार ब्रह्मा ने जीवन और पूरी सृष्टि का सृजन किया, उसी प्रकार जो गुरु है वो अपने शिष्य के अंदर पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऊर्जाओं का, ज्ञान का, अनुभव का, अच्छी बातों का सृजन करता है। और हमारी कहानियों में तो इतने बड़े बड़े गुरु हुए हैं, वशिष्ठ जैसे गुरु हुए हैं, विश्वामित्र जैसे गुरु हुए हैं, परशुराम जैसे गुरु हुए हैं, और कृष्ण जैसे गुरु हुए हैं, जिन्होंने हर समय समय पर अपने शिष्यों, अर्जुन जो उनका सबसे बड़ा शिष्य था, उसके अंदर ऊर्जा का, उत्साह का, शक्ति का संचार किया, शक्ति का सृजन किया। विष्णु गुरु तब बनता है जब वो आपके मन में जो ऊर्जा है, जो अनुभव है, जो ज्ञान है, वो जब डामाडोल होता है, ऊपर नीचे होता है, गुरु उसको मेंटेन करता है विष्णु के रूप बन में। गुरु उसको सस्टेन करता है, उसको आगे बढ़ाता है। परंतु विनय गुप्ता जी, जब आपके मन में अहंकार आ जाता है, तब गुरु माहेश्वर बन के, महाकालेश्वर बन के उस अहंकार का मर्दन करता है। जिस प्रकार महादेव करते हैं, वो रौद्र रूप में आ जाता है। और वो अहंकार का मर्दन करना गुरु के लिए बहुत जरूरी है, जो हमारे गुरुओं ने समय समय पर किया, बहुत समय समय पर किया। मैं शुरुआत करता हूं कुछ छोटी छोटी कहानियों से, किस प्रकार गुरु अहंकार का मर्दन करते हैं अपने शिष्यों का। बहुत छोटी सी बात है प्रमोद गर्ग साहब, कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो अर्जुन और कर्ण के बीच का जब परस्पर द्वंद्व चल रहा था, तब कृष्ण को लगा कि अर्जुन के मन में कहीं ना कहीं अहंकार आ रहा है, कि भाई भीष्म ध्वस्त हो गए, धराशायी हो गए, द्रोण धराशायी हो गए, अब ये सूत पुत्र क्या मेरे सामने पानी भरता है, इसका तो मैं तुरंत नाश कर ही दूंगा। और अब तो इसके पास इसके कवच कुंडल भी नहीं है, और ये परशुराम की दी शिक्षा भी भूल गया है, अब मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। तब कृष्ण को लगा कि मेरे शिष्य के मन में अहंकार आ रहा है। तो मीनाक्षी जी, उस अहंकार का मर्दन करने के लिए उनको माहेश्वर का रूप धरना ही था। उन्होंने क्या किया कि जब कर्ण बाण चलाता था, तो अर्जुन का रथ 2.5 कदम पीछे जाता था, और जब अर्जुन बाण चलाता था, तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे जाता था। अब एक तरफ तो अर्जुन का रथ 2.5 कदम पीछे जा रहा है, और कर्ण का रथ उससे दुगने से भी ज्यादा 7 कदम पीछे जा रहा है। परंतु कृष्ण क्या करते थे? कृष्ण संदीप जैन जी, जैसे ही कर्ण बाण छोड़ता था और अर्जुन का रथ 2.5 कदम पीछे जाता था, कृष्ण कहते थे, वाह कर्ण वाह, अहो कर्ण अहो। और जब अर्जुन बाण चलाता था, 7 कदम उसका रथ पीछे जा रहा है कर्ण का, कृष्ण बिल्कुल शांत। सुनील अग्रवाल साहब, कृष्ण कुछ जवाब नहीं देते थे। अब अर्जुन परेशान कि जब मेरा दुश्मन बाण चला रहा है, मेरा रथ मात्र 2.5 कदम पीछे जाता है, और मेरा सारथी बोल रहा है वाह कर्ण वाह, अहो कर्ण अहो। मैं बाण चलाता हूं, उसका रथ 7 कदम पीछे जाता है, और ये मुंह पे बिल्कुल उंगली रख के बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। तो अर्जुन बौखला गया, बोला योगीराज ये क्या माया है, इसको आप एक्सप्लेन कीजिए या अपनी गलती स्वीकार कीजिए। तब कृष्ण ने बोला, अर्जुन अपने रथ को देखो, तुम्हारे रथ के झंडे पर हनुमान बैठे हैं, वो हनुमान जिनकी पूंछ तुम्हारा भाई महाबली भीम हिला तक नहीं पाया था। तुम्हारे रथ के पहियों को देखो, तुम्हारे रथ के पहियों पर शेषनाग लिपटा है दोनों ओर, ताकि पहिए हिले ना, जमे रहें। इस सब के बावजूद वो कर्ण अपने एक बाण से तुम्हारे रथ को 2.5 कदम पीछे फेंक रहा है, और कर्ण के झंडे पर ना हनुमान है, ना पहियों पर शेषनाग है, फिर भी तुम मात्र 7 कदम उसका रथ पीछे फेंक पा रहे हो। मैं किसकी तारीफ करूं, तुम्हारी या कर्ण की? इस प्रकार उन्होंने अर्जुन के मन में बैठे अहंकार का नाश किया। गुरु साक्षात महेश्वर। इसीलिए जब गुरु हमको डांटता है ना,
जब हमको उसकी बात अप्रिय लग रही होती है तो उस अप्रियता को दूर रख के उसकी बात को सुनिए, क्योंकि वो बात ही आपके लिए सबसे काम की बात है। आजकल तो क्या होता है, किसी टीचर ने हल्का सा ऊंचा बोल दिया सुजाता जी, बच्चे को, उस टीचर को स्कूल से निकलवा के मानते हैं कि हमारे बच्चे को ऊंचा कैसे बोल दिया, जबकि उस टीचर के ऊंचे बोलने के पीछे क्या संदेश हो सकता है उसको कोई नहीं मानता। बहुत बड़े, और गुरुओं की महानता ये है, गुरुओं का त्याग ये है सुमित्रा बंसल जी, कि गुरु हमेशा अपने शिष्य के नाम से जाना गया है। द्रोणाचार्य को हम द्रोणाचार्य क्यों मानते हैं? क्योंकि वो अर्जुन के गुरु थे। गुरु ने पूरा अस्तित्व शिष्यों के नाम कर दिया। अगर द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु ना होते तो उनको आज द्रोणाचार्य के नाम पे पुरस्कार क्यों दिए जाते? मनीष जी, रामकृष्ण परमहंस को हम जानते हैं क्योंकि विवेकानंद के वो गुरु थे, और विवेकानंद ने उनका कैसे उनके त्याग का उन्होंने वापस रिपे किया कि विवेकानंद ने अपने नाम से मठ नहीं खोले, पूरी दुनिया में मठ खोले। किस नाम से? रामकृष्ण मिशन। ये उनके गुरु का उनको ट्रिब्यूट था। अपने गुरु के नाम पे मठ खोल के उनके बातों को प्रचार किया। एक बार की छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, आपने सुनी होगी। विवेकानंद का नाम नरेन था, उनका बाद में नाम विवेकानंद पड़ा, पहले नरेन कहा जाता था। तो नरेन के मन में बड़ा ये कौतूहल था, बड़ा ये परेशानी थी कि मुझे ईश्वर से मिलना है, मुझे ईश्वर से मिलना है, ईश्वर है भी कि नहीं है। उनको जो भी धर्म गुरु मिलता था वो जाके पूछते थे, क्या आपने भगवान को देखा है? तो सब कहते थे, अरे भाई भगवान ऐसे कहाँ दिखते हैं। वो, और नरेन ने क्या सीखा था कि बात पर विश्वास करो, जब उसको मान लो, उसको समझ लो, वरना विश्वास मत करो। अब नरेन कहते थे भगवान को देखा ही नहीं तो फिर मैं क्या मानूं। तो सबसे पूछते थे कि भगवान को देखा है कि नहीं देखा। तो उनके कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, इंग्लिश प्रोफेसर थे, उन्होंने बोला, मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जिसने ईश्वर को देखा है, जो ईश्वर से साक्षात बातें करता है। उन्होंने बोला, ये कौन है? वो है रामकृष्ण परमहंस। अब नरेन उनकी शरण में पहुंच गए, और नरेन को देखते ही रामकृष्ण परमहंस की आंखों से आंसू आ गए कि अरे नारायण, तुमने आने में कितनी देर लगा दी, मैं तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूं। और नरेन ने क्या कहा, मैं नारायण नहीं हूं, मुझे भगवान से मिलाओ। और परमहंस बोलते रहे कि भगवान से मिलेगा, जब तेरा समय आएगा तो भगवान से मिलेगा, पर ये बता मिलेगा तो मांगेगा क्या? तो उसने बोला, मैं मांगूंगा, मेरे बाबा को पैसे चाहिए, हमारा छोटा घर है, हमारे पास संपत्ति नहीं है, मैं सब कुछ मांगूंगा भगवान से। तो परमहंस ने बोला, अभी तो भगवान से मांगने के लायक हुआ नहीं है, इंतजार कर। पर नहीं, उनको नहीं, विवेकानंद पीछे पड़ रहे कि मुझे भगवान से मिलना है, मिला के रहो, वरना आप झूठे हो। जब इतना अहंकार विवेकानंद के अंदर आ गया, तब उस अहंकार का नाश करना जरूरी था, महेश्वर का रूप धारण करना जरूरी था। तब परमहंस ने क्या किया? परमहंस ने बोला, चल मेरे साथ चल। वो काली माँ के द्वार पर उनको ले गए कि मैं बैठा हूं बाहर काली माँ के दरवाजे पर, मेरी काली माँ से बात होती है, मेरी माँ मेरी बात सुनती है, अंदर जा और माँ तुझको दर्शन देगी, उससे मांग ले जो मांगना है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। उसने बोला, माँ दर्शन देगी तो जरूर मांगूंगा। ठीक है। स्वामी जी अंदर गए, और अंदर जाके वो हतप्रभ रह गए। साक्षात साकार रूप में काली माँ खड़ी है उनके सामने, सांस ले रही हैं, वो उनको देख पा रहे हैं। मिट्टी की मूर्त नहीं थी वो गौरव कुमार जी, साक्षात काली माँ खड़ी हैं। और माँ ने बोला, मांग क्या मांगता है? और विवेकानंद के मुंह से आवाज नहीं निकली कि अब जब साक्षात भगवान ही आ गए तो मैं और क्या मांगू। वो लौट के बाहर आए तो पूछा परमहंस ने, मांग लिया, दौलत गाड़ी पैसा सब मांग लिया? उसने बोला, गुरुजी मैं तो कुछ मांग नहीं पाया, मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। बोला, अरे मूर्ख क्या कर रहा है, मैं बड़ी मुश्किल से भगवान को लेकर आया हूं, फिर से जा, मांग कर आया। अब विवेकानंद वापस गए, फिर से माँ काली दिखी, पूछा मांगो क्या मांगते हो? उनके मुंह से फिर आवाज नहीं निकली, फिर लौट के आ गए। परमहंस ने बोला, तू मुझे गुस्सा दिला रहा है, तुझे भगवान से मिलना था, आज तुझको मैं साक्षात भगवान से मिलवा रहा हूं, मांग ले जो मांगना है, आखिरी मौका दे रहा हूं, फिर मौका नहीं मिलेगा। आखिरी बार विवेकानंद अंदर गए, वापस से माँ काली साकार रूप में खड़ी है, पूछा अब तो मांग लो। तो क्या मांगा विवेकानंद ने? मुझे वैराग्य दे दो, मुझे इतना दे दो कि मुझे कुछ ना चाहिए, मतलब मुझको कुछ ना पाने की समझ दे दो, मुझे मात्र वैराग्य दे दो, मुझे त्याग दे दो, मुझे तपस्या दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और माँ ने बोला तथास्तु। तो जब बाहर आके पूछा परमहंस ने, बताया, परमहंस ने बोला, अरे क्या मांग के आ गया वैरागी, वैरागी तो तू है ही, पैसा मांग लेता, गाड़ी मांग लेता। कह रहा, अरे मजाक कर रहे हो गुरुजी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो इस बात को नूतन अग्रवाल जी मैं पूरी गारंटी से कह रहा हूं, यदि कभी ऐसा हो कि साक्षात भगवान आपके सामने आ जाएं, आप नहीं मांग पाएंगे। वो सिर्फ हमारे मन की अंदर की इच्छाएं हैं कि गाड़ी मिल जाए, इतना पैसा मिल जाए, आज 2 BHK कल 3 BHK हो जाए, फिर 4 BHK हो जाए। पर जब आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, और ईश्वर की प्राप्ति मतलब अपने आप की प्राप्ति, उस दिन ये सब बातें बहुत छोटी लग जाती हैं। और यदि आपके साथ कोई गुरु है,
गुरु गुरु की बात हमको हमेशा समझ आ जाए, ये ऐसा होता नहीं है खैतान साहब। कई आज तक ऐसा हो रहा है, हमारे गुरु ने जो बातें हमको छठी सातवीं क्लास में सिखाई थी वो आज आके समझ आ रही हैं हमको, तब समझ नहीं आई। और अभी भी गुरुओं की ऐसी बहुत सी बातें हैं जो शायद आने वाले समय में समझ आएंगी। तो हमको समझ नहीं आया है, इसका मतलब ये नहीं कि गुरु की बात में दम नहीं है। मान के चलो जो गुरु ने सिखाया उसमें बहुत दम है। आज समझ नहीं आ रहा है, कल समझ आएगा। गोयल साहब क्या हुआ धीरेन्द्र गोयल जी, एक बार ये हुआ कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, युद्ध समाप्त होने के बाद सब अपने अपने घर गए, अपने अपने घर गए। तो कृष्ण सारथी थे अर्जुन के, तो वो भी रथ लेकर पहुंच गए महल के बाहर। अब रथ पहुंच गया, सारथी बैठा है, रथी बैठा है। कृष्ण ने बोला अर्जुन आप रथ से उतरिए। अब अर्जुन ने कहा भाई ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहे हैं, प्रोटोकॉल तो ये कहते हैं कि पहले ड्राइवर उतरता है, ड्राइवर गेट खोलता है, फिर गाड़ी का मालिक उतरता है। अब मेरा ड्राइवर बोल रहा है कि पहले तुम उतरो। उसने बोला भाई प्रोटोकॉल तो ये कहते हैं कि पहले आप उतरिए, आप उतरिए उसके बाद मैं उतरूंगा। कृष्ण ने बोला अर्जुन जिद मत करो, मैं कह रहा हूं उतरो तो उतर जाओ। अर्जुन बुरे मन से मुंह बना के उतर गया और कोने में जाके खड़ा हो गया। जैसे ही कृष्ण उस रथ से उतरे वो रथ ध्वस्त हो गया, उसमें विस्फोट हो गया, धू धू करके रथ जलने लगा। अब अर्जुन ने बोला महाराज समझाओ ये क्या लीला की आपने। तब कृष्ण ने समझाया कि तुम्हारे रथ पर इतने दिव्य अस्त्रों के वार हुए हैं कि ये तो कब का ध्वस्त हो चुका था, क्योंकि मैं बैठा था इसलिए रथ सिमटा हुआ था। अगर मैं उतर जाता तो तुम इसके साथ स्वाहा हो जाते। तो आपके जीवन पर, आपके अस्तित्व पर, आपके स्वाभिमान पर, आपके ज्ञान पर, आपके अनुभव पर बाहरी संसार के बहुत से वार हमले रोज हो रहे हैं। आपके गुरु की शिक्षा है जिसने आपको बचा रखा है, चाहे आप उसको आज पहचानते हैं चाहे नहीं पहचानते हैं। तो आज हम सभी लोग हाथ जोड़कर जहां भी हमारे गुरु हैं उनको नमस्कार करते हैं कि हम गुरु की महिमा को स्वीकार भी करते हैं, उसके आगे वंदना भी करते हैं और बस यही दुआ करते हैं गुरुओं को आशीर्वाद, उनका ज्ञान हमारे साथ हमेशा बना रहे। तो ये हमको गुरुओं की महिमा सुनने को मिलती है हमारे हिस्टोरिकल टेक्स्ट में। अब आते हैं वापस से अपनी बात पर कि लीडरशिप एंड मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम रामायण एंड महाभारत। नाउ हियर त्रिलोक आनंद जी, लीडरशिप एक ऐसा काम है जो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। वो इसलिए क्यों? देयर आर नो मीडियोकर लीडर्स, ईदर यू आर अ गुड लीडर और अ बैड लीडर, दैट इज इट। आप बीच में नहीं हो सकते हैं। यू कैन बी अ मीडियोकर सॉफ्टवेयर प्लेयर, यू कैन बी अ मीडियोकर चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू कैन बी अ मीडियोकर लॉयर, बट यू कैन नॉट बी अ मीडियोकर लीडर। ईदर यू आर अ गुड लीडर और अ बैड लीडर। अब गुड लीडर क्या होते हैं और बैड लीडर क्या होते हैं, इस गुत्थी को सुलझाते हैं हमारे ये ग्रंथ जिसमें मेजरली आते हैं रामायण और महाभारत। इन ग्रंथों को यदि एक बार के लिए हम धर्म से अलग कर दें, उनकी परवेसिवनेस पर, उनके विश्व स्वरूप पर ध्यान दें, तो ये हमको बहुत डेली रूटीन के इतने लेसन दे जाते हैं। उनमें से कुछ लेसन्स मैं आज आपके लेकर आया हूं। उन लेसन्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें जो हमको समझनी है कि इन ग्रंथों को, इन किताबों को पढ़ते समय जिन बातों का हमको ध्यान रखना है वो इंपॉर्टेंट बातें ये हैं। सच्चिदानंद पांडा साहब भी बैठे हुए हैं। पांडा साहब, सबसे पहली बात हमको ये समझनी है, जो अभी देखिए दशहरा आ रहा है, दशहरा आ रहा है, हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? दशहरा है अच्छाई पर बुराई का प्रतीक की विजय का, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। बुरे का अंत हुआ, अच्छे की विजय हुई, इसे दशहरा मनाया जाता है। लेकिन मैं आज आपको बिल्कुल नई बात बताने जा रहा हूं, इसको गौर से सुनिए और समझिए। हमारी कहानियों में अच्छाई और बुराई का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हमारी कहानियों में भगवान और शैतान का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हिंदू सनातन धर्म में शैतान का कॉन्सेप्ट नहीं है। सैटन, शैतान ये अलग धर्मों से आए हैं और जितनी भी कहानियां हम पढ़ते हैं वो लिखी गई है 13वीं 14वीं शताब्दी में, तो उन पर उन धर्मों का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। हमारी कहानियों में सुमित्रा जी एक ही कॉन्सेप्ट है, वो है कर्म और कर्म फल। दैट्स इट। अच्छा बुरा कुछ नहीं है। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। और ये बात समझानी अपनी जनरेशन को इसलिए भी जरूरी है कि जब हम रावण को बुरा और राम को अच्छा बना के कैटेगराइज कर देते हैं तो रावण से अच्छी बातें सीखना हम लोग छोड़ देते हैं। हम मान के नहीं चलते कि हम रावण से भी कुछ अच्छा सीख सकते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि राम को तो कभी कर्म फल मिला ही नहीं। भगवान को भी अपने कर्मों का फल मिला है, इस जन्म में नहीं अगले फल में जन्म में मिला होगा। मैं मनीष जैन जी 2 उदाहरण देता हूं कि राम ने बाली को पीछे से मारा, पेड़ के पीछे चुपके बाली को मारा, ये राम का कर्म था। उसके पीछे बहुत से लॉजिक है, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उस कर्म का फल कब मिला? कि जब वही बाली शिकारी बन के द्वापर युग में आया और उसी बाली ने कृष्ण के पैरों में बाण मार के उनकी जीवन लीला का अंत किया। अगले जन्म में आके राम को भी अपने कर्म का फल मिला।
सिमिलरली राम ने धनुष पर बाण चढ़ा के रौद्र रूप लेके समुद्र से रास्ता मांगा कि समुद्र मुझको लंका तक जाने का रास्ता दो। समुद्र ने बोला सर ये प्राकृतिक नहीं है, इट इज अननेचुरल, पानी बीच में से कट नहीं सकता है। राम ने बोला मुझको रास्ता चाहिए, समुद्र ने रास्ता दिया, पुल बनवाया। उसी समुद्र ने सुजाता जी द्वापर युग में आके कृष्ण की द्वारिका को बहा दिया, अपने अंदर ले लिया। तो कर्म का फल तो ईश्वर को भी भोगना पड़ा है। तो हमके अपने अपने बच्चों को आगे से सिखाना है ओम प्रकाश जी कि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, अच्छा इंसान बुरे कर्म करेगा उसको बुरा फल मिलेगा, और जो ट्रेडिशनली बुरा इंसान है अगर वो अच्छे कर्म कर देगा उसको अच्छा फल भी मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो हमको समझना है कर्म और कर्म फल, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। दूसरी बात हमको जो समझनी है विनय गुप्ता जी, वो समझना है वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड फैक्ट। सत्य और तथ्य में क्या अंतर है? सत्य और तथ्य हमको लगता है एक ही बात है सर, नहीं सर एक बात नहीं है। सत्य और तथ्य का अंतर जिस दिन समझना और अप्रिशिएट करना हम सीख जाएंगे, इन किताबों की मीनिंग हमारे लिए बदल जाएंगे। होता क्या है, कई बार जो बात सुनीता गुप्ता जी बैठी हैं किचन गार्डन से, नमस्कार सुनीता जी। सुनीता जी, सत्य और तथ्य में कई बार बहुत फर्क पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक माँ अपने बच्चे को प्रेम के वात्सल्य के आवेश में आके कहती है कि तुम इस दुनिया के सबसे सुंदर बालक हो। अब ये बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है, उस माँ के लिए अपने बच्चे से सुंदर बालक कहां पर होगा। लेकिन अंकुर जग्गी जी, क्या ये बात तथ्य है? शायद नहीं है, क्योंकि शायद उस माँ ने सारे बच्चों को जाकर नहीं देखा इस दुनिया में कितने बच्चे हैं। तो वो बात फैक्ट शायद ना हो, लेकिन वो ट्रूथ है। तो अनिल जी भी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपका भी स्वागत है। अनिल जी, सत्य और तथ्य को जिस दिन हम सेपरेट करना सीख जाएंगे, इन कहानियों से हम जो रियल मीनिंग है, हम अनिल जी बहस में पड़ जाते हैं, क्या हुआ कैसे हुआ पहले साबित करो। 5000 साल पहले, 12000 साल पहले जो कहानियां हुई हैं उनको कैसे आप साबित कर सकते हैं? और उनके आप प्रूफ मांगने जाएंगे तो कैसे ढूंढेंगे? रीता सेठ जी, अभी कुछ दिन पहले बात चली थी कि 30 साल पहले डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। तो 30 साल पहले डॉक्यूमेंट जब सरकार ने मांग लिए तो त्राही त्राही हो गई। तो हमारे घर में तो 1 महीने पहले का बिजली का बिल नहीं मिलता, और हम रामायण के 7000 8000 साल पुराने सबूत मांग रहे हैं। वो संभव नहीं है, वो संभव नहीं है। हमको सत्य की खोज करनी है, तथ्य की खोज नहीं करनी है। और इसको समझते हम कुछ उदाहरणों से। बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण है सुनीता कपूर जी, शूर्पणखा की नाक कटना। अब हम सब जानते हैं कि शूर्पणखा की नाक कटी, और उसका बड़ा अच्छा सीन बनता है जब भी आप रामायण पे कोई सीरियल देखती हैं, रामलीला देखती हैं। शूर्पणखा की नाक कटी, ये सत्य है। तथ्य ये भी हो सकता है कि रावण की इतने बड़े पराक्रमी राजा की जो सकल सर्वस्व का स्वामी था, उसकी इकलौती बहन 2 वनवासी भाइयों के पास प्रेम प्रस्ताव लेकर जाती है और वो उसको मना कर देते हैं। अर्थात उसकी बेइज्जती हो गई, उसका अपमान हो गया। और हमारी हिंदी व्याकरण में विनय गुप्ता जी, अपमान होने का मुहावरा क्या है? नाक कटना। तो शायद शूर्पणखा की नाक उस प्रकार से कटी हो कि उसका अपमान हो गया, और हमने क्या किया? हमने सच में उसकी नाक काट दी। तो सत्य और तथ्य की बहस में पढ़कर हम लोग उसके फिजिकल रिप्रेजेंटेशन में चले गए। सिमिलरली प्रमोद गर्ग जी, एक और उदाहरण देता हूं। अब द्रोणाचार्य, आज गुरुओं की बात हो रही है, हमने कहानी ये सुनी है कि द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य एकलव्य का नाटक का अंगूठा काट लिया। अब आप देखिए, इतना महान गुरु इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि वो अपने शिष्य का अंगूठा काट ले, जिसने उसकी मूर्ति से सब कुछ सीखा है। द्रोणाचार्य ने, ओम प्रकाश गुप्ता जी, एकलव्य का अंगूठा काटा, ये सत्य है। तथ्य ये भी हो सकता है कि द्रोणाचार्य ने ये कहा हो कि एकलव्य, तुम बहुत श्रेष्ठ धनुर्धर हो, जीवन भर इस विद्या का उपयोग करो, परंतु आने वाले समय में महाभारत नाम का युद्ध होगा कौरवों और पांडवों के बीच, मुझे वचन दो कि तुम उस युद्ध में हिस्सा नहीं लोगे। इतना सा वचन मेरे को दे दो। और एकलव्य ने कहा हो, गुरुदेव इतना बड़ा वचन मांग के तो आपने मेरा अंगूठा सा काट लिया, अब क्या होगा इस अंगूठे का? तो अंगूठा सच में काटा ऐसा मत मान के चलिए, अंगूठा काटा सत्य है, तथ्य कुछ भी हो सकता है। तो ये सत्य और तथ्य की बहस बहुत लंबी है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंच गई हो, कि अगर पहुंच गई तो आप थम्स अप करके बता सकते हैं कि हमको उसके पीछे की लर्निंग, उसके पीछे के मैसेज को पकड़ना है। असली घटना क्या हुई थी उसकी बहस में पढ़ने का कोई निष्कर्ष निकलेगा नहीं, क्योंकि उसको क्वांटिफाई करने के हमारे पास कोई तरीके हैं नहीं। तो इन कहानियों के सत्य को पकड़ते हुए, क्योंकि इंटरप्रिटेशन बहुत सारी हैं, रामायण के 300 से अधिक वर्जन उपलब्ध हैं। रामायण के, सुमित्रा बंसल जी, 300 से अधिक वर्जन्स हैं। जैन रामायण अगर आप पढ़ेंगे, जैन रामायण में लक्ष्मण ने रावण को मारा, क्योंकि राम तो अहिंसावादी थे। अब किससे बहस करेंगे आप जाके कि सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं?
जैन रामायण में रावण को सीता का पिता बताया गया है। आप किससे बहस करेंगी? आप अद्भुत रामायण पढ़िए, अलग रामायण है। तो जो आपने सुना है वो भी सत्य है, जो मैंने सुना है वो भी सत्य है, सब कुछ सही है जब तक उसके पीछे की टीचिंग जो है, उसके पीछे का मैसेज वो है। तो सत्य और तथ्य के फेर बिना पढ़ते हुए, ये बात मैंने इसलिए भी कही क्योंकि बाद में आप लोगों के सवाल आ सकते हैं कि सर हमने तो ये सुना है। तो मीनाक्षी जी, जो आपने सुना है वो बिल्कुल ठीक सुना है, जो मैंने सुना है वो भी ठीक है, क्योंकि कहानियां ऐसी हैं कि इनकी सबकी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होती हैं। तो इन इंटरप्रिटेशंस में ना जाते हुए, सत्य को पकड़ते हुए, क्या लीडरशिप लेसन्स हमको दे गए ये राम, कृष्ण, भीष्म, विश्वामित्र जैसे बड़े बड़े नायक। तो इन लेसन्स को मैंने अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहला जो कैटेगरी मैं आपके लेकर आया हूं वो है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब है समय के साथ बदलना, जिसकी आज के समय में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज का जो समय है राजीव सुजारिया जी, वो समय किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा समय आएगा। आपने भी नहीं की थी, मैंने भी नहीं की थी, पर समय आ गया। अब क्या करना है? हमको समय के साथ बदलना है। ये हमको राम और कृष्ण की कहानियों से कैसे सीखने को मिलता है, ये मैं आपको समझाता हूं। राम और कृष्ण, मनीष जी, दोनों ही विष्णु के अवतार थे, हम सभी जानते हैं। एक ही भगवान के दो अवतार, दोनों का पर्पस क्या? धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश। रामायण में क्या कहा तुलसीदास ने कहा, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तारही कृपानिधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, असुर अधम अभिमानी बढ़ते हैं, तब प्रभु अलग अलग शरीर धारण करके आते हैं। हरहि कृपानिधि सज्जन पीड़ा, और सज्जन लोगों की रक्षा करते हैं, उनकी पीड़ा हर लेते हैं। ये रामायण में कहा। महाभारत में क्या कहा? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूं। दोनों में सेम कॉन्सेप्ट, सेम पर्पस, एक ही भगवान के दो रूप। फिर पांडा साहब, उन दोनों की कहानियों में इतना अंतर क्यों? क्या अंतर है? अंतर यह है, एवरीथिंग विच राम स्टूड फॉर, कृष्णा डिफाइड। हर वो चीज जो राम का आदर्श था, कृष्ण उसके अगेंस्ट गए। राम की कहानी, राम का बचपन, कृष्ण की कहानी, कृष्ण का बचपन बिल्कुल अलग। राम का बचपन क्या बीता? रघुकुल, जो इतना बड़ा वंश है, जिसमें भगीरथी, रघु, अज, पुरु जैसे महान राजा हुए, दशरथ, इक्ष्वाकु का जो वंश था, इतने महान कुल के एक महान राजा दशरथ के सबसे बड़े बेटे के रूप में राम का जन्म हुआ। और जन्म होते ही सब तरफ ख्याति फैल गई कि राम का जन्म हुआ है, एक महापुरुष का जन्म हुआ है, जो अपने समय का विष्णु कहलाएगा। स्ट्रेट अवे ब्रांडिंग की एक टॉप प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। एप्पल का आईफोन लॉन्च हो गया, सब जगह बात फैल गई कि बड़ा प्रोडक्ट आया है। टॉप ब्रांडिंग, टॉप मार्केटिंग। ये राम की कहानी है। कृष्ण की कहानी क्या है? रातों रात जेल के अंदर पैदा हुए, किसी को पता नहीं, बस जो जेल के सिक्योरिटी गार्ड है उनको पता है। रातों रात उनकी मां से अलग करके, उनको नदी पार करा के, सर पे रख के एक ग्वाले के घर देकर आया गया, जो कि एक व्यापारी था, दूध दही बेचता था, गैया चराता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। पूरा बचपन संघर्ष में बीता। राम का बचपन बीता राजमहल में, 3 माताओं का प्यार मिला, वशिष्ठ का ज्ञान मिला। कृष्ण का क्या हुआ? सगा मामा कभी कौवे को भेज रहा है, कभी पूतना को भेज रहा है, कभी बैल को भेज रहा है, इंद्र कभी वर्षा कर रहा है, कभी माखन चुरा रहे हैं तो मां रस्सी से बांध रही है। सारे स्ट्रगल बचपन में कृष्ण को करने पड़े, किसी ने नोटिस नहीं किया। बहुत बाद में जाकर जब 16 वर्ष की आयु में कंस का नाश किया, बाद में गुरु संदीपनी से ज्ञान लिया, फिर गीता का ज्ञान दिया, तब जाकर योगीराज कृष्ण के रूप में उनकी स्थापना हुई। दोनों का कर्व देखिए, राम का कर्व कहां से स्टार्ट हुआ और कृष्ण का कर्व कितना बाद में जाके स्टार्ट हुआ। दैट इज वन डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस आप देखिए, राम ने क्या कहा? सुजाता जी, एक शब्द, एक बाण, एक नारी। एक बार जो शब्द कह दिया, वचन दे दिया, उससे हटना नहीं। एक बार जो बाण मार दिया, वो निशाने पे लगेगा। और एक नारी, एक ही नारी से प्रेम करेंगे, एक ही नारी से विवाह करेंगे। राम की एक बीवी, कृष्ण की कितनी पत्नियां? 16,108 बीवियां, विनय गुप्ता जी। उनको अष्टभार्या भी कहा जाता है। 8 उनकी मुख्य बीवियां थी, वो जो रुक्मिणी और अपनी सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, उनकी 8 मेन वाइफ थी। 16,100 उनकी पॉलिटिकल या सोशल वाइफ जो भी थी। राम ने अपहरण के अगेंस्ट जाकर लंका पर हमला कर दिया कि स्त्री का अपहरण आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन छवि जैन जी, कृष्ण ने अपहरण किए भी और करवाए भी। रुक्मिणी का अपहरण खुद किया और अपनी बहन सुभद्रा का अपहरण करवाया अर्जुन के हाथों। एवरीथिंग विच राम स्टूड फॉर, कृष्ण डिफाइड। फिर भी दोनों भगवान हैं,
राम 14 कला संपूर्ण, कृष्ण 16 कला संपूर्ण। राम अंशावतार, कृष्ण पूर्णावतार। क्यों अंतर है? क्यों विष्णु ने इन दो कहानियों में, दो कैरेक्टर्स में इतना ग्लेयरिंग डिफरेंस रखा? एक ही मैसेज है इसके पीछे, दैट इज एडेप्टेबिलिटी। और एडेप्टेबिलिटी क्या है कि त्रेता युग से गौरव कुमार जैन जी द्वापर युग तक आते आते मॉरल स्टैंडर्ड्स बहुत गिर गए थे, पॉलिटिकल स्टैंडर्ड्स बहुत गिर गए थे। कृष्णा को पॉलिटिक्स करना पड़ेगा, कृष्ण को पॉलिटिक्स में घुसना पड़ा। और इस बात को ऐसे समझिए धीरेन्द्र गोयल जी कि अगर आज के समय में ईश्वर आ जाते हैं तो आज वो धनुष बाण चला के अधर्मियों का नाश नहीं कर पाएंगे। आज उनको चुनाव लड़ने पड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपील डालनी पड़ेगी, तब जाके अधर्म का नाश होगा। क्योंकि जिस काल में ईश्वर आते हैं अवतरण करके, उस काल के मॉरल स्टैंडर्ड, पॉलिटिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको आगे बढ़ना होता है। तो विष्णु ने हमको ये मैसेज दिया कि समय के हिसाब से आपको अपनी रणनीति बनानी पड़ती है, अपने व्यक्तित्व में बदलाव करने पड़ते हैं। हम क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि आज से 6 महीने पहले जो समय था और वो आज समय है, बहुत बदल गया है। हमको अपने आप को त्रिलोक जी बदलना ही पड़ेगा, और हम बदल भी रहे हैं। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से आज हम सब बात कर रहे हैं। कोई मेरठ बैठा है, कोई बॉम्बे बैठा है, कोई बेंगलोर बैठा है, और सब एक साथ बात कर रहे हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं। हम अपने आप को बदल रहे हैं और आगे जाके और बदलना पड़ेगा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है सुजाता जी कि दुनिया पहले जैसी तो नहीं हो पाएगी, सेम एज इट इज तो नहीं हो पाएगी। कुछ ना कुछ धब्बे, कुछ ना कुछ छींटे रह जाएंगे, तो उनके हिसाब से हमको अपने आप को बदलना पड़ेगा। तो ये मैसेज विष्णु ने दिया है कि बदलते समय के साथ जो बदल जाएगा वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि समय आपके लिए रुकने वाला नहीं है, आप ही को समय की रफ्तार से चलना पड़ेगा। अडेप्टेबिलिटी। एंड फॉर जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा लेसन ये है कि जो भी आपकी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज थी कोरोना से पहले, यू हैव टू चेंज देम, यू हैव टू चेंज देम। आपको अपने पर्सनल कॉम्पिटेंस मनीष जी चेंज करने पड़ेंगे, कोई उसके अलावा चारा है ही नहीं। नूतन जी, मेरे पास बहुत से लोगों का फोन आता है, हम कॉर्पोरेट काउंसलिंग करते हैं, लोग बोलते हैं अतुल सर बड़ी घबराहट हो रही है, कंपनी कब निकाल दे पता नहीं, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, डेली हम काम तो कर रहे हैं पर कल जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी हमको उसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। तो मैं सुजाता जी एक ही बात बोलता हूं कि मेरे भाई एक बात समझो, जब घर में पैसे कम होते हैं, बजट कम होता है, बड़ी जगह से छोटी जगह में शिफ्ट होना पड़ता है, तो इंसान रसोई के बर्तन निकाल के बाहर नहीं फेंकता। जो एक्स्ट्रा फर्नीचर है ना, जो किसी काम का नहीं था, उसको बाहर निकाल के फेंकता है। तो अगर आप कंपनी के बर्तन हो जिनके बिना कंपनी का गुजारा नहीं है, तो कोई आपको नहीं निकालेगा। क्योंकि कंपनी को चलाना ऐसे टाइम में ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। पर अगर आप पहले भी फर्नीचर थे, अब भी फर्नीचर हो, तो फिर तो आप पहले भी किसी काम के नहीं थे, अब भी किसी काम के नहीं हो। तो अगर, लेकिन एक तीसरा तरीका यह है कि पहले आप फर्नीचर थे पर अब आप अपने आप को एक किचन के बर्तन की वर्थ साबित करवा सकते हो। आप अपनी कंपनी को, अपनी बॉस को ये मैसेज दे सकते हो विद योर हार्ड वर्क, विद योर डेडिकेशन कि आई एम नॉट अ फर्नीचर, आई एम योर किचन यूटेंसिल, जिसके बिना आपकी किचन नहीं चल पाएगी। कौन सा, आप सब भी इतने बड़े उपक्रम चलाते हैं, सब लोग उद्यमी लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं। मनीष जी, आप ऐसे इंसान को काम से निकाल देंगे क्या जिसके बिना भी कंपनी चलना मुश्किल है? कभी नहीं निकालेंगे। छटनी होती है तो सोचा जाता है किसके बिना काम चल जाएगा। एक ही तरीका है कोरोना काल में, अपने आप को कंपनी के लिए इनएविटेबल कर लीजिए कि आपके बिना कंपनी का गुजारा ही नहीं चलेगा। अडेप्टेबिलिटी, ये मैं नहीं कहता, विष्णु कहते हैं। बदलते समय के साथ बदलना पड़ेगा, वरना समय कब आपको लील जाएगा, कब आप इतिहास बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। दैट वाज लेसन नंबर 1। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप मुझे थम्स अप देके चैट बॉक्स में कुछ भी वाई, यस, नो लिख के आप मुझे बता सकते हैं। मैंने चैट बॉक्स ओपन किया हुआ है, मुझे आपके मैसेज मिलते रहेंगे। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी बात हो, वो भी आप साथ साथ कह के मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू टेक देम अप। थैंक यू जी, थैंक यू। मुझे आपके मैसेजेस मिल रहे हैं। साधना खेतान जी मिल रहा है, दिनेश शर्मा जी क्रेडिट बैंकिंग की बात कर रहे हैं, उसमें आएंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। नेक्स्ट हेडिंग पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपके लेकर आया हूं, लर्निंग फ्रॉम लीडरशिप, लर्निंग फ्रॉम रामायण महाभारत, दैट इज लीडरशिप स्टाइल, लीडरशिप स्ट्रेटजी। राम और कृष्ण जब दोनों में इतना अंतर था, उनके लीडरशिप स्टाइल भी Sorry to interrupt, Atul, we do have few questions. I think so. Would like to address the questions simultaneously or at the end of the session? I think we will take up the questions in the end only, वरना वो फ्लो ब्रेक हो जाएगा। आप खाली उनको मार्क करके रखिए गौरव जी। We'll take all the questions, don't worry. So I request everyone, all the questions you have, we can take it at the end of the session. That would be great. Yes.
यस यस। थैंक यू। दिनेश शर्मा जी ने लिखा है देयर इज नो नेटिंग ऑफ कर्म फल लाइक बैलेंसिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन बैंकिंग। सर कर्म फल का इतना हो सकता है कि अगर आपको पता है कि मुझसे कुछ खराब कर्म हो गए हैं, इसमें बड़ी अच्छी फिलॉसफी है, मैं आपको क्विकली समझा देता हूं मनीष जी विद योर परमिशन। 4 तरह की यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, 4 तरह की कॉम्बिनेशन है। यानी पास्ट में आपके अच्छे कर्म हैं इसलिए आज आप अच्छा फल भुगत रहे हैं, आज भी आपके कर्म अच्छे हैं इसलिए कल भी आप अच्छा कर्म भुगतेंगे, अच्छा फल भुगतेंगे। दूसरा क्या है नहीं, यानी आज आप अच्छा भुगत रहे हैं, इसका मतलब है आपने पास्ट में अच्छे कर्म किए हैं। सुजाता जी, होता है ना कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, वो कुछ नहीं करता, उसको सब कुछ मिल रहा है, ये उसके पास्ट कर्मों का फल है। पास में अच्छा काम किया है इसलिए आज अच्छा मिल रहा है, नहीं, लेकिन आज अच्छा नहीं कर रहा है तो कल भुगतेगा, कल का इंतजार कीजिए। दूसरा क्या है, नहीं है। पास्ट में अच्छा काम नहीं किया इसलिए आज सुख नहीं मिल रहा है, लेकिन आज अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए कल सुख मिलेगा। और चौथा क्या है, बिल्कुल ही गुड़ गोबर, नहीं, ना पास्ट में अच्छा किया इसलिए आज अच्छा नहीं मिल रहा है, आज भी अच्छा नहीं कर रहे तो और तो कल भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो हमेशा याद रखिए है, नहीं है, नहीं। तो आपके हमेशा ये सारे सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं गायब हो जाएंगे सर। तो कभी भी ये मत सोचिए कि मुझे इतना कम मिल रहा है उसको ज्यादा क्यों मिल रहा है, ये उसके पुराने कर्मों का फल है, एक दिन वो खत्म हो जाएगा, फिर आज के कर्मों का हिसाब होगा। और अपनी कर्म बैलेंस शीट को हमेशा क्लीन रखिए, हमेशा क्लीन रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट राम एंड कृष्णाज लीडरशिप स्टाइल। बहुत स्ट्राइकिंग डिफरेंस है दोनों में। अनिल जी का भी कमेंट आ रहा है, बहुत स्ट्राइकिंग डिफरेंस है और डिफरेंस बहुत सिंपल है। इसको मैंने 4 पंक्तियों में आपके लिए लेकर आया हूं। द 4 पंक्तियां आर वेरी सिंपल, दैट इज, जब सेना उत्साहित तो हो पर अनुभव में हो अधिक नहीं। राम की सेना को इमेजिन कीजिए विनय गुप्ता जी, इमेजिन द राम की सेना, वानर सेना है, बहुत उत्साहित है। जब सेना उत्साहित तो हो पर अनुभव में हो अधिक नहीं, तब राम बनो और सबसे आगे रहकर तुम नेतृत्व करो। पर अब कृष्ण की सेना को इमेजिन कीजिए, जब दल में हो प्रचुर अनुभव, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, बहुत अनुभव है, पर जब दल में हो प्रचुर अनुभव और कौशल की भी कमी नहीं, तब सारथी बन के मार्ग दिखाओ, दल को आगे बढ़ने दो। डोंट कंफ्यूज राम विद कृष्ण। जब सेना बहुत, आपकी सेना में उत्साह है, आपने एक नया स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट किया है, सारे यंगस्टर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, फ्रेश एमबीएस, बहुत एक्साइटेड है कि सर इस स्टार्टअप को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, तब आपको राम बनना है और डेली उनको गाइड करना है, उनको राह दिखानी है, बिकॉज दे डोंट हैव एन एक्सपीरियंस। हनुमान, नल नील, जांबवान, सुग्रीव, अंगद बहुत उत्साहित योद्धा थे, वानर सेना बहुत विशाल थी, लेकिन रावण जैसे पराक्रमी योद्धा से युद्ध करने का अनुभव नहीं था। तो राम का रथ हमेशा सबसे आगे होता था, वो आगे बढ़ के अपनी टीम को लीड करते थे। लेकिन महाभारत में क्या हुआ, अर्जुन के रूप में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, भीम के रूप में सर्वश्रेष्ठ गदाधर था, युधिष्ठिर के रूप में सर्वश्रेष्ठ भाला चलाने वाला, नकुल सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज, सहदेव सर्वश्रेष्ठ घोड़ा चलाने वाला। अब कृष्ण बोलते आओ अर्जुन सिखाता हूं धनुष कैसे चलाते हैं। अर्जुन बोलेगा महाराज मुझे धनुष चलाना आता है, आप मुझे बताइए करना क्या है। ऐसे केस में आपको पीछे से सिर्फ गाइड करना है और कुछ नहीं करना। गौरव अग्रवाल जी, आप भी मैनेजमेंट एसोसिएशन चलाते हैं, हम जब सीईओ कोचिंग करते हैं, वी कोच लॉट ऑफ सीईओज, लॉट ऑफ कंपनी हेड्स अबाउट देयर गोल्स एंड अचीवमेंट्स। तो सीईओज बोलते हैं कि अतुल सर समझ नहीं आ रहा, हमने इतने कॉम्पिटेंट मैनेजर्स रिसोर्सेज हायर किए हुए, हमने वीपी एचआर, वीपी मार्केटिंग, वीपी सेल्स, वीपी एडमिन सब कुछ रखा हुआ है, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, टीम में मोटिवेशन नहीं है। हम उनको एक बात बोलते हैं कि सर आपको बनना कृष्ण, आप राम बनना चाह रहे हैं। जैसे कि सर समझ नहीं आया, हम समझाते हैं, जब हर डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट आपके पास है तो आप खुद क्यों सुबह 10 बजे आके ऑफिस बैठ जाते हो और रात को 10 बजे तक बैठे रहते हो और हर आधे घंटे में रिपोर्टिंग मांगते हो कि एक्सेल शीट भेजो, व्हाट्सएप करो, ये करो। अगर आपने एक्सपर्ट हायर किए हैं, गिव देम द एनवायरनमेंट टू ग्रो, गिव देम टाइम टू गिव यू रिजल्ट्स। अब हर बार राम पूछते, कृष्ण पूछे अर्जुन कितने लोगों को मारा इस बाण से, अब इसमें कितने मर गए, वो ये बाण क्यों चूक गया, अर्जुन बोला भाई मुझे माफ करो, मुझे अपना काम कर दे दो, शाम को आपको बता दूंगा क्या हिसाब रहा। सो अगर आपने एक्सपर्ट्स हायर किए हैं, उन एक्सपर्ट्स की सर्विसेज लेना भी एक गुण है, तब आपको कृष्ण बनना पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है, हमको घर में राम बनना पड़ता है, बाहर कृष्ण बनना पड़ता है।
इसका अशोक जैन जी कोई स्टेट फॉर्मूला नहीं है कि मैं 25 साल तक राम बनूंगा फिर कृष्ण बन जाऊंगा। आपको केस टू केस डिसाइड करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको शशिकांत जी एक डिपार्टमेंट में कृष्ण बनना पड़ रहा है, एक में राम बनना पड़ रहा है। आपको देखना पड़ेगा क्या उनके एक्सपीरियंस लेवल्स हैं, क्या उनकी अचीवमेंट की हिस्ट्री है और आप बिजनेस के किस स्टेज पर हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझसे पूछें सर कोरोना काल में क्या करना है, कोरोना काल से अश्विनी गुप्ता जी जब बाहर निकलेंगे, आप भी कुछ ना कुछ उद्यम करते होंगे, कोरोना काल के बाद जितने भी लोग लीडरशिप पोजीशन में हैं, चाहे आप पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं, आप HUF के करता हैं, आप CEO हैं, CM हैं, PM हैं, पंच हैं, NGO चलाते हैं, एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, जो भी आप हैं, आपको राम बनना है, क्योंकि ये हालात सभी के लिए नए हैं, किसी को इनका अनुभव नहीं है, सब इसको पहली बार फेस कर रहे हैं। आपको उनको अनिल जैन जी लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है। अब ये समय सारथी बनने का नहीं है, ये समय कमांड अपने हाथ में लेने का है। और जब वो लोग थोड़ा सा भी अनुभव उनको हो जाएगा, तब आप सारथी बनिए, उनको गाइड कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए। दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ लीडरशिप स्टाइल ऑफ राम एंड लक्ष्मण। ओम प्रकाश जी ने लिखा है, आई एम फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ नेशनल प्रोडक्शन काउंसिल, फॉर्मर प्रेसिडेंट, यू आर इफेक्टिव स्पीकर। थैंक यू ओम प्रकाश जी, थैंक यू, मुझे मैसेज आपके मिल रहे हैं। आई एम हम्बल दैट यू लाइकिंग इट, थैंक यू सो मच। नाउ आगे बढ़ते हैं। राम और कृष्ण, नॉट लक्ष्मण, कृष्णा, सॉरी राम एंड कृष्णा में भी मैंने गलत बोल दिया। राम और कृष्ण के कंपैरेटिव स्टाइल से हमको सीखने को मिलता है। तो ऑलवेज कीप इन माइंड, कीप एनालाइजिंग योर एवरी सिंगल डे। ऐसा कहा जाता है सुजाता जी कि हमको घर में राम बनना चाहिए, अपने रिश्तों को राम की तरह निभाना चाहिए और बाहर की दुनिया को कृष्ण बन के डील करना चाहिए। तो इट मे बी ट्रू इन सम सर्कमस्टांसेस, बिकॉज डेफिनेटली कृष्ण मीन्स सम मैनिपुलेशन, सम पॉलिटिक्स, बट इट मे नॉट बी ट्रू ऑलवेज. Now, another thing that I want you all to learn is from Ramayana and Mahabharata, a true leader is somebody who empowers. True leader is somebody who empowers. Now, this empowerment, Manish Jain ji, is a very, misunderstood word. क्यों है empowerment misunderstood word? हमको लगता है कि empowerment means having that state of authority. But empowerment does not mean you having authority. Empowerment means you empowering others. You empowering others. और सुजाता जी, इसका बहुत सिंपल सा एक तरीका होता है पहचानने का। आप किसी पावरफुल पर्सन से मिलने गई हैं, या किसी पॉलिटिकल लीडर या किसी बड़े कॉर्पोरेट से मिलने गई हैं, उनके रूम में आप मिलने गई हैं और किसी स्पेस में मिलने गई हैं। द मोमेंट यू एंटर द स्पेस एंड यू फील वीक, यू फील कि मुझको बोलने में झिझक हो रही है, इनसे बात कैसे करूं, मैं अपनी बात कैसे रखूं, दैट मीन्स दैट पर्सन इज नॉट एम्पावर्ड, दैट पर्सन इज पावर हंग्री। वो आपकी पावर भी खींच रहा है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खींच रहा है, वो बाली है, उससे बचिए। रियल एम्पावर्ड पर्सन इज जो आपको कंफर्टेबल फील कराता है, जिसके साथ सिंपल सा तरीका है, अगर उस इंसान की कंपनी में आप खुद एम्पावर्ड फील नहीं कर रहे हैं, दैट पर्सन इज नॉट अ गुड लीडर। हमारे मन में, हमारे खासकर देश में, गौरव जी, क्या माना जाता है कि आपके जितने फॉलोअर्स हैं उतने बड़े आप लीडर हैं। भाई चुनाव है, कौन कितनी भीड़ इकट्ठी कर लेगा। सर मैं 500 लोग लेकर आऊंगा, अच्छा बैठ जाओ। सर मैं 1000 लोग लेकर आऊंगा, अच्छा बैठ जाओ। सर मैं 5000 लोग लेकर आऊंगा गांव से, तुम बड़े नेता हो, तुम ले आओ 5000 लोगों को। जिसके पीछे जितने लोग हैं हम मान लेते हैं बड़ा लीडर है, जबकि बड़ा लीडर वो है, इस बात से तय होता है कि आप अपने पीछे अपने जैसे कितने लीडर खड़े करके जा रहे हैं। आप अमर तो नहीं है, जब आप जाएंगे आपकी जगह कौन लेगा। अगर आपने अपनी जगह लेने वालों को तैयार नहीं किया है, दैट मीन्स यू आर नॉट अ गुड लीडर, क्योंकि समय हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। इसकी सीख हमको मिलती है रामायण महाभारत की कहानियों में, बहुत जगह मिलती है। मैं आपको कुछ उदाहरण दे देता हूं। छवि जैन जी, विश्वामित्र से हम सभी परिचित हैं। विश्वामित्र बहुत बड़े योद्धा थे, पहले वो क्षत्रिय थे, बाद में ऋषि बने, बहुत महान ऋषि थे। अगर हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ऋषि विश्वामित्र के लिए ताड़िका, मारीच, सुबाहु जैसे राक्षसों का वध करना, अंत करना संभव नहीं था, तो हम गलती कर रहे हैं। विश्वामित्र डेफिनेटली उनका अंत कर सकते थे, उन्हें बहुत से राक्षसों का अंत किया है, पर विश्वामित्र चाहते थे कि अब समय आ गया है कि इस समाज को, इस युग को, इस दुनिया को एक नया नायक दिया जाए। इसलिए वो राम को लेकर आए कि राम, अब समय आ गया है कि तुम आगे बढ़ो, आगे से ये टॉर्च तुम्हारे हाथ में रहे। दशरथ बहुत परेशान थे, वो बोलते कि महाराज मुझे लेके चलो। तो बोला विश्वामित्र ने, महाराज आपके और मेरी एज में ज्यादा अंतर नहीं है, हम दोनों अपना उम्र निकाल चुके हैं, मुझको एक युवा लीडर चाहिए। दशरथ ने बोला, मैं राम के साथ अंगरक्षक भेज देता हूं।
तो राम ने बोला, पिताजी मैं खुद उनके अंगों की रक्षा करने जा रहा हूं और आप मेरे साथ अगर रक्षा कर रहे हैं, मैं उनके अंगों की रक्षा करूंगा, वो मेरे अंगों की रक्षा करेंगे, ये कैसे चलेगा? निश्चिंत रहिए, मैं जाऊंगा। विश्वामित्र ने आने वाले समाज को राम के रूप में नया लीडर दिया। राम के दो टीचर्स थे। अगर आप लोग इस बात को समझते हो मीनाक्षी जी, राम के दो टीचर्स थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र। वशिष्ठ ने राम को थ्योरेटिकल नॉलेज दिया, आश्रम में बिठाकर उनको नीति का, राजनीति का, कुल का, नारी सम्मान का, युद्ध शिक्षा का, सबका ज्ञान दिया। विश्वामित्र ने उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया। विश्वामित्र ने उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया, उनको जंगल लेके गए। गीता नारंग जी, आपके बच्चे भी सुन रहे हैं, आई होप उन तक बातें पहुंच रही हो। विश्वामित्र अपने बच्चों को, गीता जी इस कहानी से सीखिए, उनको थ्योरेटिकल नॉलेज भी देना है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी देना है। विश्वामित्र ने राम को, लक्ष्मण को प्रैक्टिकल नॉलेज दिया, उनको वन लेके गए। ये आपने सुमित्रा जी महाभारत रामायण की कहानी में बहुत बार सुना होगा, कुछ भी बात हुई वनवास पे भेज दो, कुछ भी गलती हो गई वनवास दे दो। क्या है ये वनवास? व्हाट इज वनगमन? वन से इतना ऑब्सेशन क्यों था कि हर बात पे वनवास? और क्या वनगमन हमारे लिए जरूरी है? डेफिनेटली वनवास, आज के टाइम में आप डेफिनेटली जंगल नहीं जाएंगे। वनवास मीन्स वेयर यू आर इक्वल विद एवरीबडी एल्स। वनवास मीन्स नो लग्जरी, नो प्रेरोगेटिव, नो स्पेशल राइट। अगर राम लक्ष्मण वन में है तो शेर ये नहीं बोलेगा, अरे आप तो राम हो, मैं आपको नहीं खाऊंगा, मैं तो हिरण को खाऊंगा। राम, वन मीन्स वेयर यू हैव टू सर्वाइव ऑन योर ओन एवरी सिंगल डे। दैट इज व्हाई एवरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज वनगमन। जब आप बन जाएंगे सीए, डॉक्टर, तब आप बन जाना, अभी आप वनवास में हो। राम को विश्वामित्र वनवास पर ले गए, उनको लाइफ का प्रैक्टिकल ज्ञान दिया, उनको नारी का सम्मान करना सिखाया, ताड़िका से मिलवाया, अहिल्या से मिलवाया, फिर सीता से मिलवाया। ये मिसिंग हो गया सुजाता जी महाभारत में। महाभारत में शिक्षा के तुरंत बाद उनको रंगशाला में लेके कंपटीशन करवा दिया, उनका वनगमन नहीं हो पाया, उनका प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो पाया। नारी शिक्षा का पढ़ाई तो बहुत करी, प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया, तब जाके वो द्रौपदी का चीरण या जो भी सब हुआ। तो प्रैक्टिकल नॉलेज अपनी जनरेशन को देना बहुत जरूरी है। ये हम सीखते हैं विश्वामित्र से, तब जाके आगे के लीडर खड़े होते हैं। पितामह भीष्म बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़े नायक थे, पर एक चूक मेरे हिसाब से कर गए, अगली जनरेशन को मौका ही नहीं दिया आगे बढ़ने का। हर बार खुद खड़े हो गए आगे कि मैं फेस करूंगा। पिता ने बोला मुझे सत्यवती से प्यार हो गया है, पिताजी आप बैठो मैं जाता हूं। कहीं सुना आपने बेटा पिता का प्रेम प्रस्ताव लेके जा रहा है कि मेरे पिता को आपसे प्रेम हो गया है, पिता का ब्याह करवाया सत्यवती से। फिर भाई हुए चित्रांगद, उसके बाद विचित्रवीर। अब विचित्रवीर को ब्याह करना है, अंबा अंबिका अंबालिका का स्वयंवर हो रहा है, पर भैया मेरे बस की तो नहीं है स्वयंवर जीतना, कोई बात नहीं तुम बैठो मैं जाता हूं। शादी उसको करनी है, स्वयंवर में जा कौन रहे हैं? भीष्म। वो उनको लेकर आ रहे हैं, बोलना चाहिए था बाहर निकलो, लेकर आओ खुद से, पर नहीं, ओवर प्रोटेक्ट कर दिया अपनी फैमिली को। अपनी फैमिली को ओवर प्रोटेक्ट नहीं करना है, विराट से युद्ध करना है, मैं जाऊंगा, कोई भी हमला हुआ है मैं करूंगा। महाभारत के युद्ध तक विनय गुप्ता जी एज पर कैलकुलेशन उनकी उम्र करीब 250 साल हो चुकी थी, फिर भी खड़े हैं युद्ध में सेनापति बनके। क्यों? उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। हमको ये गलती नहीं करनी है। जिस दिन हमको लगे कि परिवार की नई जनरेशन तैयार है अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए, उनको छोड़ दीजिए, उनको फेल होने दीजिए। बच्चों का पालन करना है मनीष जी, तो कबूतर या चिड़िया मत बनिए, चील बनिए। चील कैसे अपने बच्चों का पालन करती, कैसे सिखाती है? चील अपने उस बच्चे को, उस चूजे को जिसने कभी सुजाता जी पंख नहीं खोले, उसको चोंच में भरती है और बहुत ऊपर लेके चली जाती है और ऊपर जाके उसको छोड़ देती है। उस बच्चे ने जिसने जीवन में कभी पंख नहीं खोले, क्योंकि चील को भरोसा है कि ये चील का बच्चा है, जमीन पर गिरने से पहले पंख खोल लेगा और खुद ही उड़ना सीख जाएगा। लाइफ ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, रिस्क है। एक आधा बच्चा नहीं खोल पाता होगा, पर वो रिस्क लेना पड़ता है। तो जिस दिन आपकी जनरेशन तैयार है, उनको ओवर प्रोटेक्ट मत कीजिए गोयल जी, उनको अपनी गलतियां करने दीजिए। जैसे आप सीखे हैं वैसे वो सीखेंगे। हमको भीष्म वाली मिस्टेक नहीं करनी है, हमको विश्वामित्र की तरह नई जनरेशन को एक्सपोज करना है न्यू चैलेंजेस के लिए। दैट इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम द एम्पावरमेंट, हाउ टू एम्पावर फ्यूचर लीडर्स। राम को राम बनाया गया, उनको मौका दिया गया, तब जाके वो आगे बढ़े ना। So this is my take on empowering and the lessons of empowering that we get from Ramayana and Mahabharata. I hope that is clear with all of you. I hope that is clear with all of you. Thank you. मुझे आपके thumbs up मिल रहे हैं जी। थैंक यू सुजाता जी, थैंक यू। आगे अपनी बात को मैं बढ़ाता हूं, बात को बढ़ाता हूं। एक लीडर के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है, लेकिन लीडर के कम्युनिकेशन का क्या मतलब है?
लीडर के कम्युनिकेशन का ये मतलब है अनिल जी कि व्हेन वी टॉक टू कंपनी ओनर्स कि कैसे मैनेजर्स आपका काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि सर हमने ऐसे ऐसे लीडर रखे हुए हैं, ऐसे ऐसे मैनेजर रखे हुए हैं जिनके सामने कोई मुंह नहीं खोल सकता। जब वो बोलते हैं सब लोग चुप हो जाते हैं। हम बोलते हैं सर सबसे पहले उनको निकाल के बाहर कीजिए। अगर उनके सामने उनकी टीम मुंह तक नहीं खोल सकती, उस लीडर का कोई फायदा नहीं, हमको वो नहीं चाहिए। लीडर, असली लीडर वो है जो सबसे कम बोले और सबसे ज्यादा सुने, सबसे ज्यादा सुने। हमारे इंडिया में कैसा है, इंडिया में तो किसी के हाथ में माइक आ जाए, माइक छोड़ने को तैयार नहीं है। शशिकांत जी, माइक लेना पड़ता है वापस की, सर आपका टाइम खत्म हो गया। वी आर ऑब्सेस्ड विद टॉकिंग। इंडिया में हर कोई बोलना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता। अच्छा लीडर वो है त्रिलोक जी जो सिर्फ सुने। अगर आपकी टीम आपके सामने अपनी बात रखने में झिझक रही है तो डेट मीन्स आपकी लीडरशिप स्टाइल में कहीं ना कहीं कमी है। यहां पर एक जो टर्म आता है वो टर्म आता है एक्टिव लिसनिंग। ध्यान से सुनो, उस बात को समझो, फिर आगे रिएक्ट करो। एक लीडर शुड स्पीक व्हेन ही मस्ट, ही शुड गिव चांस टू अदर्स टू स्पीक। उसको उनकी बात सुननी चाहिए। एंड एक और इंपॉर्टेंट टर्म रीता जी जो हम सीखते हैं, जो हमको हमेशा याद रखना चाहिए अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, दैट इज इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेविटी। ब्रेविटी, और ब्रेविटी का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि महाभारत में 100,000 से ज्यादा श्लोक हैं, 1,00,000 से ज्यादा श्लोक हैं नूतन जी महाभारत में, लेकिन उसका मैसेज जहां मिलता है गीता, उसमें कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक, सिर्फ 700 श्लोक। तो जो लेसन है, जो मैसेज है, वो इकोनॉमी ऑफ वर्ड के साथ दिया गया है। बहुत कम श्लोकों में, कहानी बहुत बड़ी है, 1,00,000 श्लोक से ज्यादा उसमें श्लोक है, लेकिन गीता में मात्र 700 श्लोक है। हमको गीता का ज्ञान देना है, हमको पूरी महाभारत नहीं सुनानी है, हमको तर्क की बात करनी है ताकि वो तुरंत लोगों तक पहुंच जाए। इसके लिए मैं हमेशा एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूं जो मुझे बहुत पसंद है। पांडा साहब, एक बार विंस्टन चर्चिल जो यूके के प्रेसिडेंट थे, उनसे पूछा गया कि कोई यूनिवर्सिटी के चांसलर उनके पास आए कि सर हमारे यहाँ कल डिग्रियां बांटी जाएंगी, ऐसा हम एक वो कर रहे हैं, एक हम प्रपोज कर रहे हैं, इवेंट आने वाले समय में करना चाहते हैं और हम चाहते हैं आप आके भाषण दीजिए। तो चर्चिल ने बोला अच्छी बात है, मैं आऊंगा, भाषण दूंगा। तो पूछा चांसलर ने कब आ सकते हैं, कब मैं इवेंट प्लान कर लूं। चर्चिल ने पूछा गुप्ता जी कि मुझे कितनी देर बोलना है, आप मुझे कितना समय देंगे बोलने के लिए, बात को समझिए विनय जी। उसने बोला चांसलर ने कि सर माइक तो आपका है, आप 2 घंटे बोलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ही बोलिए। तो चर्चिल ने बोला अगर 2 घंटे बोलना है तो कल चलने को तैयार हूं। अब वो परेशान कि सर अभी रात के 8 बज रहे हैं, कल 11 बजे आप बोल रहे हैं इवेंट कर लीजिए, आपको 2 घंटे बोलना है, आपको कुछ तैयारी नहीं करनी। उसने कोई तैयारी नहीं करनी, मैं कल बोलने को तैयार हूं। उसको लगा भाई महाज्ञानी आदमी है, क्या तैयारी करेंगे। उसने वैसे ही पूछ लिया मजे मजे में कि चर्चिल साहब अगर मैं आपको मात्र आधा घंटा दूं बोलने के लिए। तो चर्चिल ने बोला तब मेरे को 3 दिन लगेंगे, आधा घंटा बोलने के लिए मैं 3 दिन की तैयारी के बाद आऊंगा। अब उस चांसलर के दिमाग घूम गया कि ये तो उल्टी गंगा बह रही है। अब चांसलर ने कहा कि महाराज अगर मैं आपको सिर्फ 5 मिनट दूं। तब चर्चिल ने बोला मैं 1 हफ्ते बाद आऊंगा। अब गौरव कुमार जी, ये बात चांसलर की समझ से बाहर, ये तो उल्टी बात हो रही है। 2 घंटे बोलने के लिए कल चलने को तैयार है, आधे घंटे के लिए 3 दिन मांग रहे हैं, 5 मिनट बोलने के लिए पूरा हफ्ता मांग रहे हैं। तब चर्चिल ने समझाया इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स। अगर मुझे अपने पूरे राजनीतिक जीवन का सार 5 मिनट में बोलना है तो मुझे एक एक शब्द चुनना पड़ेगा। मैं यहां वहां की बात नहीं कर सकता। 2 घंटे बोलना तो बहुत आसान है, मैं यहां की बात करूंगा, वहां की बात करूंगा, ये बोलूंगा, वो बोलूंगा, घूम फिर के आ ही जाऊंगा पॉइंट पे। नहीं भी आया तो कौन सा उनको याद है कि 2 घंटे से क्या बोल रहा है। लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ 5 ही मिनट है, मुझे अपनी बात बिल्कुल तर्क के साथ एक एक शब्द चुनना है, तो गीता वो 5 मिनट है जिसको समझने और पढ़ने के लिए समय चाहिए। महाभारत में तो कभी कर्ण की बात कर ली, कभी उसकी बात कर ली, यहां से घूम फिर के जोड़ दिया। तो ये हमको समझना, अगर अच्छी लीडर बनना चाहते हैं, वी हैव टू हैव इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, वी हैव टू हैव ब्रेविटी। आई होप दिस मैसेज इज लाउड एंड क्लियर टू ऑल द करंट एंड फ्यूचर लीडर्स। प्लीज चूज योर वर्ड्स वेरी केयरफुली। जब आप बोले तब आप सिर्फ आप ही बोलें, और आप तब बोले जब आपको बोलने की बहुत आवश्यकता है, उसके अलावा आप ना बोलें। That is one very important lesson that we learn from Ramayana and Mahabharata. Now quickly covering the remaining topics, उसके बाद 15-20 मिनट बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर लेना शुरू करेंगे। कम्युनिकेशन की बात आने के बाद हम बात करते हैं लीडरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सर एम आई एलिजिबल टू बी अ लीडर? क्या मैं भी लीडर बन सकता हूं? मैं तो कुछ नहीं जानता, लाइफ मैंने कुछ नहीं किया। कैन आई बी अ लीडर? व्हाट डज रामायण एंड महाभारत टेल अस अबाउट इट? रामायण एंड महाभारत गिव अस वेरी गुड इंसाइट ऑन इट। Who can be a leader? Who can be a leader?
Now, I would want to ask you small questions. वो questions आप चैट में लिख के उनके इनिशियल्स भी टाइप कर सकते हैं या आप वहां से बता सकते हैं. आई कैन रीड योर लिप्स. या जो भी आपका आंसर हो उसका आप पहला लेटर टाइप करके मुझे बताएंगे तो मुझे आपका जवाब मिल जाएगा. टेल मी, हु इज द हैवीएस्ट एनिमल इन द जंगल? हु इज द हैवीएस्ट एनिमल? सबसे भारी, सबसे हैवीएस्ट एनिमल जंगल में कौन है? आप मुझे बता सकते हैं टाइप करके. ई लोग बोल रहे हैं ई, दैट मीन्स एलिफेंट. आई थिंक दे आर इंडिकेटिंग एलिफेंट. राइट, elephant is the heaviest animal in the jungle. Okay, tell me, who is the tallest animal in the jungle? Tallest, सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा, सबसे लंबा. जी means giraffe. लोग giraffe बोल रहे हैं. Getting it? Giraffe is the tallest animal in the jungle. Okay, who is the most venomous? सबसे जहरीला जानवर कौन है जंगल का? Snake. लोग snake बोल रहे हैं. Very good. S. C for cobra. कुछ लोग cobra बोल रहे हैं. Very good. King cobra, snake. I'm getting. Very good. So who is the fastest animal? सबसे तेज कौन भागता है? वायु की गति से कौन भागता है? Yes, tiger, leopard, cheetah. Very good. cheetah, leopard, deer. कुछ लोग deer बोल रहे हैं. Very good. I'm getting your answers. Very good. Now tell me one thing. Who is the king of the jungle? Who is the king of the jungle? Lion. Now lion is not the heaviest. He is not the tallest. He is not the fastest. He is not the most venomous. He doesn't have the strongest claw. कुछ तो नहीं है, किसी चीज में वो बेस्ट नहीं है. Why is the king of the jungle? Because of his attitude. Because when a lion comes, you know it's a lion. A lion doesn't say I'm a lion. You know it's a lion. When a lion, so being a leader means having the attitude of a leader. कृष्णा ने किसको मारा महाभारत के युद्ध में? बताइए मुझे पांडा जी. एक योद्धा तो बताइए जिसका नाश कृष्णा ने किया महाभारत में. एक का भी नहीं किया. फिर भी अगर मैं पूछूं महाभारत का महानायक कौन है, आप बोले कृष्णा है. क्यों है? बिकॉज ही हैड द एटीट्यूड ऑफ अ लीडर. क्या सर स्किल जरूरी नहीं है? स्किल बहुत जरूरी है, उस पर मैं आऊंगा. एबिलिटी बहुत जरूरी, उस पर आऊंगा. बट उस एबिलिटी के चक्र में फंसी दैट आई एम नॉट द बेस्ट, आई कांट बी द लीडर. सचिन तेंदुलकर हम सबके बहुत प्रिय क्रिकेटर रहे हैं, बेस्ट इन हिज गेम, न भूतो न भविष्यति. पर कैप्टेंसी दी गई, क्या हुआ? आई डोंट हैव टू रिपीट. महेंद्र सिंह धोनी को भी कैप्टेंसी दी गई. ही वॉज नॉट द बेस्ट बैट्समैन और द बेस्ट कीपर. उनके बहुत कंटेम्परेरीज थे. ही वॉज ऑलमोस्ट देयर, बट लीडरशिप में कोई सानी नहीं था. लीडरशिप इज ऑल अबाउट एटीट्यूड. लर्न लीडरशिप फ्रॉम कृष्णा. ना वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, वो तो अर्जुन है. ना वो सर्वश्रेष्ठ गदाधर, वो तो भीम है. ना वो सर्वश्रेष्ठ भालावाहक, ना वो तो युधिष्ठिर है. घोड़े में सहदेव है, तलवार में हमारा नकुल है, शतरंज में चौसर में शकुनी है. कृष्ण में क्या है? वो बेस्ट के चक्कर में नहीं पड़ते. ही इज द लीडर, ही इज द लायन, ही हैज द एटीट्यूड ऑफ अ लीडर. बट डज दैट मीन सर एबिलिटी जरूरी नहीं है? एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू कंटिन्यूअसली इंप्रूव योर एबिलिटी. जो हमने सीखा था ना बचपन में नूतन जी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. वो सिर्फ सीखने की बात नहीं है, वो करने वाली बात है. एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं सुनीता जी, आपको पसंद आएगी. सुनीता जी, मोहम्मद अली का नाम सुना है? मोहम्मद अली नाम सुना होगा आपने. मोहम्मद अली दुनिया के बहुत महान बॉक्सर, किक फाइटर. तो मोहम्मद अली हम सभी जानते हैं कि अपनी लाइफ की 99% फाइट्स वो जीते हैं. उनको हराने वाला कोई नहीं था. रिंग में जाते थे, जीत के आते थे. किसी ने उनसे पूछा, अली साहब व्हाट इज योर एज ओवर अदर्स? आप ही क्यों जीतते हैं? ये संभव भी कैसे है कि जब आप रिंग में उतरते हैं तो आप हमेशा जीत कर आते हैं? हाउ इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? इसके पीछे गुरु मंत्र क्या है? तो अली ने बोला इसके पीछे कोई गुरु मंत्र नहीं है, छोटी सी बात है. वो बात ये है अनिल साहब, अली ने बोला कि व्हेन आई स्टार्ट माय डे, जब मैं अपने दिन की शुरुआत करता हूं, मैं अपने प्रतिद्वंदी का चित्र अपने मन में बनाता हूं कि आज मेरा प्रतिद्वंदी क्या सोचेगा. मेरा अपोनेंट ये सोचेगा टुमारो आई हैव टू फाइट मोहम्मद अली एंड अशोक जैन जी, मोहम्मद अली इज द बेस्ट. तो मेरा अपोनेंट सोचेगा कि अगर मुझे कल मोहम्मद अली द बेस्ट से लड़ाई लड़नी है तो मुझे 4 घंटे का अभ्यास करना पड़ेगा. वो अपना 4 घंटे का अभ्यास शुरू कर देता है. ध्यान से समझिए बात को. अब क्योंकि जिससे मुझे कल लड़ना है वो 4 घंटे अभ्यास कर रहा है, मैं भी आज 4 घंटे अभ्यास करूंगा. अब 4 घंटे अभ्यास करने के बाद सिद्धार्थ साहब, मोहम्मद अली क्या सोचते हैं? 4 घंटे अभ्यास करने के बाद मैं वापस से अपने प्रतिद्वंदी का चित्र बनाता हूं. अब वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा जग्गी साहब कि मुझको कल मोहम्मद अली से लड़ना है,
ही इज द बेस्ट। मैंने 4 घंटे अभ्यास किया है, पर ये काफी नहीं है, मुझे 4 घंटे और अभ्यास करना पड़ेगा। अब क्योंकि मेरा अपोनेंट 4 घंटे अभ्यास कर रहा है, इसलिए मैं मोहम्मद अली भी 4 घंटे और अभ्यास करता हूं। उसका 8 घंटा हो गया, मेरा 8 घंटा हो गया, अभी हम दोनों बराबर है। अब 8 घंटे बाद में वापस से उसका चित्र बनाता हूं, तो मनीष जी 8 घंटे बाद मैं मोहम्मद अली सोचता हूं कि अब मेरा अपोनेंट थक गया होगा, वो सोचेगा मैंने बहुत प्रैक्टिस कर ली है, कल मैं जाके मोहम्मद अली से लड़ूंगा, और वो घर जाके खाना खा के सो जाता है। मैं मोहम्मद अली अब क्या करता हूं, मैं और 4 घंटा प्रैक्टिस करता हूं। उसने 8 घंटा प्रैक्टिस किया बिकॉज ही हैज टू फाइट मोहम्मद अली द बेस्ट। मैं 12 घंटा प्रैक्टिस करता हूं बिकॉज आई एम मोहम्मद अली द बेस्ट। सुजाता जी 8 घंटे उनको तैयार करते हैं जिनको मोहम्मद अली से हारना है, उसके लिए भी 8 घंटा करना पड़ेगा, वरना आप एक भी पंच सह नहीं पाएंगे। लेकिन मोहम्मद अली बनना है तो आपको 12 घंटे काम करना पड़ेगा। इसको अगर मैं नटशेल में बताऊं, इफ यू आर डूइंग व्हाट अदर्स आर डूइंग, यू विल गेट व्हाट अदर्स विल गेट, और probably less than that. If you want more, you have to do more. आप जाइए पांडा साहब सुनार की दुकान पे, सर आई वॉन्ट गोल्ड बट आई कैन पे फॉर सिल्वर, वो आपको गोल्ड दे देगा क्या? नहीं देगा। इफ यू वॉन्ट गोल्ड यू हैव टू पे फॉर गोल्ड। इफ यू वॉन्ट टू बिकम मोहम्मद अली यू हैव टू वर्क लाइक मोहम्मद अली। उसका मोटिवेशन ढूंढना पड़ेगा, और मोटिवेशन ना कभी बाहर से नहीं आता है, मोटिवेशन अंदर से आता है। मोटिवेशन इज अ टोटली इंटरनल प्रोसेस एंड दैट डेडिकेशन कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। हमेशा सुमित्रा जी की बहुत बड़ी बात नहीं होती है, एक छोटी सी इच्छा भी आपको मोटिवेट कर देती है। एक बार हुआ क्या सुमित्रा जी, अमानिशा थी, अमानिशा माने अमावस की काली रात थी, अमावस की काली रात थी। द्रोणाचार्य अपने आश्रम में सो रहे थे तो उनको कुछ आवाज आई। उनको आवाज क्या आई कि कोई बाण चला रहा है और बाण जा जाकर लकड़ी में पेड़ में धंस रहे हैं। अब द्रोणाचार्य मशाल लेके बाहर आए, उन्होंने देखा घनी काली रात में अर्जुन आंखों पर पट्टी बांध के शब्द भेदी बाण का अभ्यास कर रहा है राजीव जी। अब उसने बोला, द्रोणाचार्य ने, उन्होंने बोला अर्जुन क्या कर रहे हो? उसने बोला महाराज मैं शब्द भेदी बाण का अभ्यास कर रहा हूं। तो द्रोणाचार्य बहुत खुश हुए कि तुम तो एक्सपर्ट हो गए हो, जहां से पत्ते की आवाज आती है तुम बाण मार रहे हो, ये कैसे हुआ? उसने बोला अर्जुन ने, अभ्यास गुरुदेव अभ्यास। गुरुदेव बहुत खुश हुए कि वाह, मैंने अपने शिष्य को ऐसी प्रेरणा दी है कि उसने इतना अभ्यास कर लिया कि अंधेरी काली रात में आंख पर पट्टी बांध के वो शब्द भेदी बाण छोड़ रहा है। बहुत खुश हुए। तो अर्जुन ने हाथ जोड़े कि महाराज आप खुश बेशक हो लीजिए, लेकिन इस प्रेरणा का स्रोत आप नहीं है। अब द्रोणाचार्य परेशान कि मेरे आश्रम में मुझसे बड़ा गुरु कौन आ गया जो मेरे शिष्य को प्रेरणा दे रहा है शब्द भेदी बाण चलाने की। अर्जुन ने बोला आइए मैं लेके चलता हूं। अर्जुन ने उनका हाथ पकड़ा और अंधेरी काली रात में रास्ता ढूंढते ढांढते कहां पहुंच गए सुमित्रा जी? वहां पहुंच गए जहां रसोई बनती थी और खाना रखा जाता था। अब वहां पहुंचे अंधेरी काली रात में, तो कुछ ऐसी आवाज आ रही है कि कोई कुछ खा रहा है, कुछ खा रहा है। द्रोणाचार्य ने बोला ये कैसी आवाज है? तो अर्जुन ने बोला पता लगाते हैं। अर्जुन ने बोला भीम भैया क्या कर रहे हो? भीम ने आवाज लगाई, अर्जुन मैं खीर खा रहा हूं। अब द्रोणाचार्य ने पूछा भीम अंधेरी काली रात है, हाथ को हाथ दिखता नहीं, तुम बिना मशाल बिना चिराग बिना मोमबत्ती के खीर तक पहुंचे कैसे? भीम ने बोला अभ्यास गुरुदेव अभ्यास, मैंने अभ्यास किया है अंधेरी काली रात में खीर को ढूंढने का। तो कहने का मतलब एक छोटी सी इच्छा भी आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन सकती है। उसको पहचान के उसको डेडिकेटेडली फॉलो करने की आवश्यकता है। आई होप दिस मैसेज इज लाउड एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्रैक्टिस, so in a nutshell ability is very important. Keep practicing your ability, keep getting good at it, but leadership is just not about ability, it is ability coupled with attitude. 2 A's, double A's, attitude and ability. चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा इस वक्तव्य के अंत की ओर धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमको सिखाते हैं रामायण महाभारत, वो है मैनेजमेंट ऑफ टीम। जो टीम है आपके पास, जो लोग हैं आपके पास, उनको कैसे मैनेज किया जाए और उनको कैसे समझा जाए, और समझने के बाद उनकी स्थिति के हिसाब से उनको डील किया जाए। ये हम क्या सीखते हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा 1-2 कहानियां सुनाता हूं। सबसे पहले तो हमको रामायण महाभारत सिखाते हैं कि आपको अपनी टीम को पहचानना है कि आपकी टीम में जो लोग हैं वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो मैंने अपने अध्ययन से गौरव जी 4 कैटेगरीज बनाई हैं कि रामायण महाभारत के अध्ययन के बाद हमारी टीम में 4 प्रकार के लोग हो सकते हैं। वो 4 प्रकार कौन से हैं? हनुमान हो सकते हैं, भीम हो सकते हैं, अर्जुन हो सकते हैं और शिखंडी हो सकते हैं। ये 4 प्रकार के लोग कौन हैं? हनुमान वो लोग हैं जिनके पास शक्ति है, टैलेंट है, लेकिन उस शक्ति का ज्ञान ही नहीं है।
पता ही नहीं है कि हमारे पास ये शक्ति है, आपको उनके साथ क्या करना है, आपको उनको मोटिवेट करना है, उनको इग्नाइट करना है, उनको अपने आप से मिलवाना है, आपने आप से मिलवाना है। उसके बाद वो आपका हर काम कर जाएंगे, सागर लांग के सीता माता को अंगूठी देकर आ जाएंगे, यदि आपने उनको अपने आप से मिलवा दिया। हमारे आसपास ऐसा बहुत सा टैलेंट होता है अनिल जी, कि टैलेंट को खुद पता नहीं कि मैं टैलेंटेड हूं, पर यदि भगवान ने आपको वो आंख दी है कि आपने उसका टैलेंट पहचान लिया, इट इज अ डिवाइन लेसन, डिवाइन मैसेज, डिवाइन ऑर्डर कि उसको बताओ कि वो टैलेंटेड है, ताकि वो अपने टैलेंट को आगे लेकर जाए। दैट इज नंबर 1 हनुमान। भीम कौन है? भीम वो है जिनके पास शक्ति है, ज्ञान है, और ज्ञान का ज्ञान भी है। मुझे पता है कि मेरे पास ज्ञान है, तो मुझे मोटिवेट मत करो, मेरे अंदर आग मत जलाओ, मैं ऑलरेडी जल रहा हूं। मेरे पास बहुत ज्ञान है, ज्ञान का ज्ञान भी है, लेकिन इसका करना क्या है, हाउ टू डू इट, मुझे पता नहीं इसका करना क्या है। तब आपको कृष्ण बन के उसको सिखाना पड़ता है कि जरासंध को कैसे मारना है। जरासंध के साथ जब युद्ध हुआ तो क्या हुआ, भीम जरासंध को 2 हिस्से में चीरता था, फेंक देता था, और वो हिस्से वापस में जुड़ जाते थे। तब कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने एक लकड़ी ली, गौरव जी, लकड़ी को 2 टुकड़ों में तोड़ा, और इस हाथ की लकड़ी को वो बाजू फेंक दिया, इस हाथ की लकड़ी को वो बाजू फेंक दिया, और भीम को उसकी डायरेक्शन मिल गई, और उसने जरासंध का अंत कर दिया। तो भीम टाइप के वो लोग हैं जिनको नॉलेज है, नॉलेज है, उनको गाइडेंस का चाहिए। यू जस्ट गाइड देम एंड दे विल डू एवरीथिंग फॉर यू। थैंक यू प्रभा जी, मुझे आपका मैसेज मिल रहा है। प्रभा जी, रचना जी, कार्विंग टैलेंट, थैंक यू सो मच। प्रमोद गर्ग जी, थैंक यू, सबके मैसेज मुझे मिल रहे हैं जी। भीम को हमने समझ लिया। अब अर्जुन क्या है? अर्जुन इज द मोस्ट डिफिकल्ट पीपल टू डील विद हो जाता है जी। क्यों? क्योंकि उनको पता है, उनके पास नॉलेज है, नॉलेज की नॉलेज है, क्या करना है पता है, कैसे करना है पता है, फिर क्या नहीं पता, ये नहीं पता कि क्यों करूं, वाई, मैं पितामह भीष्म को क्यों मारूं। उनको लॉजिक चाहिए, उनको कन्विक्शन चाहिए। ये आज की जनरेशन है, बहुत एडवांस्ड है, बहुत सब कुछ पता है, गूगल पे सब कुछ है, लेकिन लॉजिक नहीं है, क्यों करूं। उनको समझाने के लिए आपको कृष्ण बन के गीता का ज्ञान देना ही पड़ेगा, आपको उनको कन्विक्शन देना पड़ेगा, उनको आपको मेंटल लेवल पे डील करना पड़ेगा। जिस दिन आपने उनको कन्विक्शन दे दिया, वो पूरी कौरव सेना का नाश कर देंगे, पर कन्विक्शन देना पड़ेगा उनको, और कन्विक्शन देने के लिए कृष्ण बन के गीता का ज्ञान भी देना पड़ेगा। दैट इज अर्जुन। थर्ड इज शिखंडी। शिखंडी कौन लोग हैं? शिखंडी आपकी टीम के डार्क हॉर्सेस हैं, जो किसी भी दिन काम नहीं आएंगे, 364 दिन काम नहीं आएंगे, लेकिन जिस दिन उनकी जरूरत है उस दिन सिर्फ वही काम आएंगे। उनको आपको वो 365वें दिन के लिए पालना पड़ता है, उनका नर्चर करना पड़ता है, उनका ध्यान रखना पड़ता है। दीज आर 4 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज। इन वेरी ब्रीफ आई कैन टॉक अ लॉट ऑन दिस, बट समय की भी मर्यादा है। तो हनुमान, भीम, अर्जुन एंड शिखंडी, ये 4 प्रकार के लोग आपको अपनी टीम में मिलेंगे। उनको पहचानिए और उनको उनकी कैटेगरी के हिसाब से डील कीजिए। प्रॉब्लम तब होती है जब आप हनुमान को अर्जुन की तरह डील कर रहे हैं, अर्जुन को शिखंडी बना के रखा हुआ है, वो गड़बड़ नहीं करनी है। टीम बन गई, टीम को पहचान लिया, उनको सही गाइडेंस भी दे दिया, फिर एक बहुत जरूरी काम जो होता है वो होता है सही समय पर क्रेडिट देना और सही समय पर क्रेडिट लेना। क्रेडिट देना और क्रेडिट लेना, दोनों बातें हमको रामायण महाभारत सिखाते हैं, और बहुत अच्छे से सिखाते हैं क्यों एक लीडर के लिए क्रेडिट देना बहुत जरूरी होता है। ये कहानी शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी, मैं आपको सुना देता हूं। जब राम सेतु बन रहा था, पांडा साहब, राम सेतु का निर्माण हो रहा था, नलनील आर्किटेक्ट थे और वो पुल बना रहे थे। पुल बनाने के लिए सुरेंद्र सिंगल जी हमारे साथ जुड़े। सिंगल जी नमस्कार, आपका स्वागत है। तो राम सेतु बनाने के लिए सिंगल साहब बड़े बड़े पत्थरों की आवश्यकता थी। तो हनुमान जो है वो 1000 किलो का पत्थर लेके जाते थे, फेंकते थे। नलनील 500 किलो का पत्थर लेके जाते थे, फेंकते थे। अपने अंगद छोटा था, वो 250 किलो का पत्थर लेके जाता था, फेंकता था। उसी दौरान एक छोटी सी गिलहरी 100 ग्राम का कंकड़ लेके भागती थी और फेंक के आती थी। 100 ग्राम कहां, तो 1000 किलो का पत्थर, कहां 100 ग्राम का कंकड़। अब वो लेके जाती थी, फेंकती थी। अब सब वानर सेना हंस रही है, अरे गिलहरी तू क्यों ये उत्पात मचा रही है, पैर के नीचे आ जाएगी, चोट लग जाएगी, मर जाएगी, साइड में बैठ जा, मजे ले, बन जाएगा हमारा पुल, इतनी मेहनत मत कर। अब वो गिलहरी उदास हो गई, उदास हो गई, पहुंची राम के पास। राम ने बोला क्यों उदास हो? उसने बोला ऐसी ऐसी बात है। राम ने सबको बुलवाया और कहा, हनुमान, नलनील, अंगद, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रभावित भी हूं। उन्होंने बोला, हनुमान, तुम्हारी क्षमता 1000 किलो का पत्थर उठाने की है और तुम 1000 किलो का पत्थर उठा रहे हो, तुम अपनी क्षमता का 100% मुझे दे रहे हो, मैं बहुत प्रसन्न हूं।
नलनील, तुम्हारी क्षमता 500 किलो की है, तुम 500 किलो का पत्थर उठा रहे हो, मैं बहुत खुश हूं। अंगद, तुम 250 किलो का उठा सकते हो, तुम 250 को उठा रहे हो, अपनी क्षमता का 100% दे रहे हो मुझे, मैं बहुत खुश हूं। परंतु ये इस गिलहरी जो है, इसकी क्षमता मात्र 50 ग्राम की है और ये 100 ग्राम का पत्थर उठा रही है मेरे लिए। ये अपनी क्षमता का दुगुना कर रही है, 200% काम कर रही है। मैं इसको कैसे इग्नोर कर दूं? मैं कैसे इसकी तारीफ ना करूं? तब उनको अपनी गलती का एहसास, उन्होंने गिलहरी को हाथ जोड़े और फिर राम ने यह भी कहा कि जब तुम्हारा पुल बन जाएगा, उसमें छोटे छोटे सुराख रह जाएंगे, उस सुराख को भरने के लिए तुम्हारा 1000 किलो का पत्थर काम नहीं आएगा, इसके 100 ग्राम के कंकड़ ही काम आएंगे। हमको छोटे से छोटे कंट्रीब्यूशन को समझना है। सुनीता जी, लोगों को अपने ड्राइवर का नाम तक नहीं पता होता, जो डेली उनका सारथी, वो तो कृष्ण है आपका, उसका नाम तो केशव है, वो आपका सारथी है, आपको रोज लेकर जाता है, आपको उसका नाम नहीं पता होता। लिफ्ट वाला रोज सलाम करता है, उसको आपको नाम नहीं पता, शक्ल नहीं पहचान पाएंगे आप। हमको छोटे से छोटे कंट्रीब्यूशन को पहचानना है, क्योंकि जिस दिन लिफ्ट वाले ने लिफ्ट बंद कर दी, फिर आपको पता चलेगा कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और दूसरी बात ये भी है जो हमको समझनी है, क्यों ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू समझनी है हमको, छवि जैन जी, कि ह्यूमन रिसोर्स की कैपेसिटी घट बढ़ सकती है। बहुत छोटी सी बात है मनीषा अग्रवाल जी, कि आपके सामने टेबल पे 1 लाख रुपए पड़े हैं आज रात को, कल आपको 1,01,000 रुपए किसी को देने हैं, आप पूरी रात उनके हाथ जोड़िए त्रिलोक जी की आप 1 लाख रुपए कल के लिए सिर्फ तुम 1,01,000 हो जाओ, बाकी मैं कुछ नहीं मांगूंगा, वो 1,01,000 ही रहेगा, 1,01,000 नहीं होगा। लेकिन आपके पास 3 एम्प्लॉय हैं और आप उनसे बोलेंगे कि समय कठिन है, अगले 2 महीने तुम 3 लोग 5 लोग का काम कर सकते हो क्या? वो आपको काम करके देंगे, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल कैन बी मोटिवेटेड। उनको आप क्रेडिट देना सीखिए, वो आपके लिए कुछ भी कर जाएंगे। पर इसके साथ माय डियर फ्रेंड्स, अपने काम का क्रेडिट लेना भी सीखो, क्रेडिट लेना भी सीखो। भीम मत बनो। 99 भाइयों का अकेले भीम ने मारा, 99 भाइयों को भीम ने मारा, अर्जुन ने एक को भी नहीं मारा। फिर भी सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन निकल के आता है? कहा महाभारत टाइप कीजिए गूगल पे, अर्जुन की फोटो बनी हुई है। पेंटर्स पेंटिंग बनाते हैं अर्जुन की, अरे बाबा अर्जुन ने मारा किसको? पितामह भीष्म को मारा शिखंडी के पीछे खड़े होके, कर्ण को मारा पहिया धसने के बाद, भीम लगा हुआ है गदा लेके सबको मार रहा है, 99 भाइयों को मारा अकेले ने, पर भोला था, मासूम था, कभी आगे बढ़ा ही नहीं क्रेडिट लेने के लिए। तो क्रेडिट देना सीखो, क्रेडिट लेना भी सीखो। बहुत अच्छी एक इमेज आई थी कोरोना काल में रीता सेठ जी कि ऐसा सुनने में आया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसी बुजुर्ग महिला को फोन किया जिसने 600 रुपए का योगदान किया प्रधानमंत्री राहत कोष में। अब पूरा देश हैरान कि कहां लोगों ने 1 करोड़, 10 करोड़, 10 लाख, 50 लाख का योगदान किया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने फोन किसको किया? जिसने 600 रुपए दिए हैं। पर तब बात समझ में आई कि जिसने 600 रुपए का योगदान किया है उसकी कुल पेंशन 500 रुपए थी, उसने अपना सब कुछ दे दिया। जिसने 10 करोड़ दिए उसकी तो नेटवर्थ 1000 करोड़ की है, उसने तो 1% दिया ना, उसने अपना 100% दे दिया। तो नेवर कंपेयर इट इन एब्सोल्यूट टर्म्स, रिलेटिव टर्म में समझिए। जो दे रहा है उसके पास देने के लिए था क्या, क्या दिया ये मत देखिए, किस नियत से दिया वो देखिए। दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर टीम एंड गिविंग देम द राइट मोटिवेशन, राइट क्रेडिट एट द राइट टाइम। तो चलिए, बातें कहने के लिए बहुत सारी हैं, अंत में मैं सिर्फ 2 बातें बोल के क्विकली अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारे पास 8 बजे का समय की मर्यादा भी है, फिर मैं आपके प्रश्न लूंगा आप सभी के। नाउ 2 इंपॉर्टेंट बातें हमको जो सीखनी है वेरी क्विकली, वो इंपॉर्टेंट बातें ये है कि क्राइसिस को कैसे बदलना है अपॉर्चुनिटी में। एक अंग्रेजी में कहावत है, नथिंग ग्रेट वॉज एवर अचीव्ड इन आइडियल कंडीशंस, इट वॉज द एडवर्सिटी विच मोटिवेटेड द ग्रेटनेस। कुछ भी बड़ा, कुछ भी महान आदर्श परिस्थितियों में नहीं हुआ था, हमेशा जो प्रतिकूल परिस्थितियां थी उनमें कुछ बड़ा हुआ। आज का जो समय है वो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, ये क्राइसिस है, इसको हमको बदलना है अपॉर्चुनिटी में, जैसा पांडवों ने किया। सर, क्या महाभारत काल में भी लॉकडाउन हुआ था? लॉकडाउन बिल्कुल हुआ था। कैसे हुआ था सर? ऐसे हुआ था कि जब दूत क्रीड़ा के बाद पांडवों को 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में भेजा गया, वो उनके लिए लॉकडाउन ही था। वो किसी से मिल नहीं सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, किसी को फोन नहीं कर सकते, ईमेल नहीं कर सकते, नो फिजिकल कांटेक्ट विद एनीबॉडी। उनको जंगल के अंदर ऑब्स्क्योर्ड रहना है। और आखिरी साल में तो पहचान लिए गए तो आपस से 12 साल। दे कुड हैव बीन हाईली डिमोटिवेटेड कि 12 साल में हम लोग क्या करेंगे, महलों में रहते थे, अब जंगल में आ गए, रोज खाना, रोज कमाना। बट उन्होंने उस क्राइसिस को बदला अपॉर्चुनिटी में। अर्जुन ने बोला, ये 12 साल का जो वक्त मिला है, ये मुझे मिला है महायुद्ध की तैयारी के लिए। महायुद्ध होगा मुझे पता है,
उसको कोई टाल नहीं सकता। मैं अगले 12 साल उस महायुद्ध की तैयारी करूंगा, एक भी दिन वेस्ट नहीं करूंगा, शस्त्रों का अर्जन करूंगा और उस युद्ध के लिए अपने आप को तैयार करूंगा। युधिष्ठिर ने क्या बोला? युधिष्ठिर ने बोला कि जिस द्यूत के चलते मैं हारा हूं, मैं 12 साल उस द्यूत की प्रैक्टिस करूंगा और 13वें साल का अज्ञातवास में वो द्यूत मेरे काम आएगी उस अज्ञातवास को काटने के लिए। किसी ने अपना माइक ऑन कर लिया है, एक बार देख लेंगे जी। युधिष्ठिर ने 12 साल विनय गुप्ता जी उस द्यूत का अभ्यास किया। 13वें साल विराट के पास पहुंच गए कि महाराज मैं द्यूत का बेस्ट प्लेयर हूं और मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं। और विराट को 1 साल तक द्यूत में उलझाए रखा, उसकी गर्दन ऊपर उठने नहीं दी और उसको पता ही नहीं चला कि मेरे राज्य में कहां से 5 तेजस्वी लोग आ गए हैं, 6 लोग आ गए हैं और उनका अज्ञातवास बहुत आराम से कट गया। उन्होंने क्राइसिस को बदला अपॉर्चुनिटी में। बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं मनीष जैन जी कि 2020 हमारी लाइफ से हट जाना चाहिए, वी शुड नॉट काउंट 2020 इन अवर लाइफ टाइम। है क्यों नहीं करना चाहिए? ये तो बहुत अच्छा साल है, हम वापस से फैमिलीज के पास आए हैं, वापस से फैमिली बॉन्ड बने हैं और हम इस समय को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्किल एनहांसमेंट में। वो सारे काम जो दौड़ भाग वाली जिंदगी में छूट गए थे, उन सारे कामों को पूरा कीजिए। जो किताबें आधी छोड़ दी थी, उन किताबों को पूरा कीजिए। जिन दोस्तों से बात नहीं हो पाई, रिश्ते छूट गए, उनको पूरा कीजिए। स्किल एनहांसमेंट कीजिए, क्योंकि ये मौका फोर्सफुली आया है, पर ये दोबारा नहीं आएगा और ना ही आए तो ये अच्छा है, पर जब आ गया है तो इसका पूरा इस्तेमाल कीजिए। एक बेटर वर्जन ढूंढिए अपना, फाइंड अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। और मेरे आसपास के बहुत से लोगों ने काम किया है। मैं सिर्फ थिएटर किया करता था, आज से पहले कभी मैंने लॉकडाउन से पहले इस तरह के पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दिए, पब्लिक स्पीचेस नहीं दी। मुझे लगा यार खाली बैठे हैं, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, कुछ और पढ़ लेते हैं, कोशिश करते हैं बात लोगों तक पहुंचाने की। और जब एक बार शुरू किया तो लोगों को बहुत पसंद आई। सुजाता जी जैसे लोग जुड़ गए, मनीष जैन जी, गौरव कुमार जी जैसे लोग जुड़े, उन्होंने हमको इनवाइट किया कि सर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे बोलिए। और आज मैं हर हफ्ते 3 से 4 लेक्चर्स दे रहा हूं। ये काम लाइफ में 34 साल की जीवन में कभी नहीं किया। तो आई फाउंड अ न्यू वर्जन ऑफ माई सेल्फ कि मैं ये भी कर सकता हूं। तो ट्राई टू फाइंड अ न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ इन दिस क्राइसिस टाइम, टर्न दैट क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटी। So this is it, and the last message I have for you when you talk about leadership, एक लीडरशिप ये भी है जब आपका माइंड आपका लीडर है और आपकी बॉडी आपकी टीम है। माइंड इज द लीडर, बॉडी आपकी टीम। इस माइंड को ऐसे ट्रेन कीजिए कि अच्छा लीडर बन के आपकी बॉडी को अच्छे से कंडक्ट करे। और उसके लिए मेरे पास एक ही इंस्ट्रूमेंट है आपके लिए, जिसका नाम है भागवत गीता। भागवत गीता मेरा ऐसा मानना है अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मशीनरी है जो सबके हाथ में होने चाहिए। जिस तरह आप समय देखते हैं घड़ी से कि समय क्या चल रहा है, वो घड़ी बताती है समय कैसा चल रहा है और उस ऐसे समय को कैसे पार करना है, वो आपको गीता बताती है। गीता पर सेशन फिर कभी करेंगे, डिटेल में मैं आपको बात करूंगा, लेकिन अभी के लिए मेरे आपका मैसेज यही है, जिस जिसके लिए भी संभव है भागवत गीता को पढ़िए, उसको समझिए, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। इसी के साथ मैं गीता के एक श्लोक के साथ इस वक्तव्य को अंत करता हूं। गीता का जो अंतिम अध्याय है 18वां चैप्टर, उसका 62वां श्लोक है, जिसमें कृष्ण की इंटेलिजेंस, कृष्ण की ब्यूटी ऑफ माइंड पता चलती है। वो श्लोक क्या है? श्लोक बहुत सिंपल है। इति ते ज्ञानम आख्यानम गुह्यात गुह्यतरम मया विमर्शय तद शेषेण यथिच्छसे तथा कुरु। सुनने वाला बहुत मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया। इस प्रकार मैंने तुमको इस दुनिया का सबसे महान ज्ञान दे दिया है। अर्जुन से कह रहे हैं, जो दुनिया के सब रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य है। Hence, I have given you the knowledge most profound in this world, which is the greatest secret of all secrets. Now, ponder over it, विचार करो, then यथिच्छसे तथा करो। उसके बाद जो तुमको अच्छा लगे वो करो। कृष्ण बोलते हैं, डोंट फॉलो मी ब्लाइंडली, आई हैव गिवन यू द नॉलेज विच इज द प्रोफाउंड नॉलेज, ग्रेटेस्ट सीक्रेट। नाउ थिंक अबाउट इट, पॉन्डर ओवर इट एंड देन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद दिस नॉलेज। उसने आपको इस नॉलेज के समानांतर रख दिया कि बुद्धि आपकी की है। एक लाइन है सुजाता जी, जो पृष्ठ चक्रव्यूह नाटक की लाइन है, आपने करवाया था मेरठ में। जैसे पृष्ठ भाग्य किसी का बार बार ऑडियो ऑन हो जा रहा है। जैसे पृष्ठ भाग्य के हम सबको स्वयं ही लड़ने पड़ते हैं, वैसे अपने अपने युद्ध सभी को स्वयं ही लड़ने पड़ते हैं। तो युद्ध आपको स्वयं लड़ना पड़ेगा। गीता आपकी हेल्प करेगी
सोचो, विचार करो और जो आपको अच्छा लगे करो। और मैं इस डायलॉग को, इस श्लोक को हमेशा ऐसे बोलता हूं ताकि मैं भी ये बात बोल पाऊं कि मुझको जो ज्ञान था वो मैंने आपको दे दिया है। अब आपको इसमें जो अच्छा लगा उसको रखिए, विमर्श कीजिए और जो आपको उचित लगे वो कीजिए। जो मैंने बोला है, इज इट एग्जॉस्टिव? नॉट एट ऑल। इज इट कंक्लूसिव? नॉट एट ऑल। ये बहुत बड़े सागर की एक छोटी सी बूंद है। यदि आपको कोई बात अच्छी लगी हो तो मेरे गुरुओं का, मेरी किताबों का सम्मान है। कोई बात खराब लगी हो तो मेरी पर्सनल गलती है, मेरी पर्सनल त्रुटि है, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। ये बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं एंड आई गिव द प्लेटफॉर्म टू गौरव कुमार जी वंस अगेन। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, मैं कोशिश करूंगा उनके उत्तर देने की। यदि मेरे पास उत्तर हुए तो अवश्य दूंगा। प्रश्नों को आज की टॉक के ऊपर ही आप केंद्रित कीजिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू गौरव जी। थैंक यू अतुल जी, दिस वंडरफुल सेशन। मन तो करा था थोड़ा 2-3 घंटे और सुन लिया जाए। इट्स बीन सो इंटरेस्टिंग बिकॉज रामायण महाभारत से हमने देखी है, सुनी है, बट वी हैव नेवर रिलेटेड इट टू आवर ओन लाइफ, राइट। हमने इसको कभी मैनेजमेंट की तरह से सीखने की कोशिश नहीं की। जी आई थिंक सो लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस। ऑडियंस वुड लाइक टू हैव the questions. यस I think so I request people to raise hand. I think so I'll unmute them one by one and they can ask the question, right? So we do have first question from Mr. Siddharth Singhal. Siddharth, could you please unmute yourself and ask the question? Yes, Hi Atul ji, it's a pleasure to attend this. Thank you Gaurav. It's a wonderful opportunity for everyone of us to relate leadership and management lessons to our mythology. I have two brief questions. Unfortunately, the uncertainty of COVID has brought unprecedented changes, and a lot of us are from the MSME sector. So one is how to keep your employees motivated, and secondly, a lot of us face this challenge in our own businesses, wherein the attitude of the employees, of the people you are working with, is mostly about Malik hai to wo dekhega. So how to align everybody to the same philosophy, to the same plane? That's my small question. दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन सिद्धार्थ जी हैज आस्क्ड एंड ये एक्चुअल में एक बहुत पर्टिनेंट प्रॉब्लम है कि हाउ टू अलाइन एम्प्लॉयज विद योर गोल एंड हाउ टू मोटिवेट देम। इसका सिद्धार्थ जी मैं रेफरेंस रामायण महाभारत से निकालूंगा क्योंकि हम उसी की बात कर रहे हैं। इसमें सिद्धार्थ जी आप समझिए, कौरवों और पांडवों की सेना के बीच का अंतर समझिए। कौरवों और पांडवों की सेना में अंतर यह था कि कौरवों की सेना में सब सिर्फ लड़ रहे थे क्योंकि उनका राजा या राजा का बेटा ने कहा लड़ना है। दे वर जस्ट मैकेनिकली सेटिस्फाइंग देयर ड्यूटीज। पांडवों की सेना में हर एक योद्धा के पास उस युद्ध को लड़ने की वजह थी। दे हैड देयर पर्सनल रीजन टू फाइट दैट वॉर, जिसको मैनेजमेंट में बोलते हैं एसोसिएशन विद द कंपनी गोल। अगर आपका एम्प्लॉय सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहा है तो जैसे ही 5 बजेंगे ना, वो 5 का भी वेट नहीं करेगा, वो 4:55 पे खड़ा हो जाएगा, उसका बैग कंधे पे आ जाएगा बिकॉज हमने टाइम पूरा कर दिया है। You have to make them feel associated with the goal of the company, and how when the company grows, they will also grow personally. आप देखिए महाभारत में धृष्टद्युम्न जो सेनापति था, उसकी बहन का अपमान हुआ था और उसके पिता ने प्रतिशोध लेने का वचन लिया था द्रोणाचार्य से। ये उसका पर्सनल मोटिव था लड़ने का। भीम ने शपथ ले रखी थी दुशासन का सीना फाड़ने की, दुर्योधन की जांग तोड़ने की, ये उसका पर्सनल मोटिव था। द्रुपद का, विराट का, अर्जुन का, नकुल सहदेव का, हर एक का एक पर्सनल मोटिव था। द कंपनी वाज पांडव सेना, द गोल वाज विक्ट्री ओवर कौरवास, बट every soldier was fighting their own battle. They had an association with the goal of that company. तो आपको वो तरीके निकालने पड़ेंगे, मे बी इट इंसेंटिव, फाइनेंशियल इंसेंटिव, प्रमोशनल इंसेंटिव, रिकॉग्निशन जो हमने बात करी राम की ग्लैरी वाली, गिविंग क्रेडिट, सो दैट दे फील एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। जब तक उनको ये लगेगा यार हमें क्या फायदा है, हम मेहनत करेंगे, प्रॉफिट मालिक ले जाएगा, तो वो उतना ही काम करेंगे। So it's not always about monetary profit, maybe some recognition, some credit. Find some ways to make them feel associated with the goal of the company. जिस दिन वो हो जाएगा सर, they will work for themselves, not for you. और कॉर्पोरेट का आजकल चैलेंज ही वही है कि एम्प्लॉय अपने लिए काम करे, और वो अपने लिए तब काम करेगा जब उसको उस गोल पूर्ति में अपना भी बेनिफिट दिखाई देगा। एंड आई रिपीट, इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट मॉनेटरी बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल, बड़ी कंपनीज में जिस वीपी का पैकेज ही 14 करोड़ का है, 15 करोड़ का है, उसके लिए 15 करोड़ और 16 करोड़ में ज्यादा फर्क नहीं है। मेरे लिए 1 करोड़ बहुत हो गए, उसके लिए इतना फर्क नहीं है। उसको आप मॉनेटरी बेनिफिट से मोटिवेट नहीं कर सकते, वहां आपको दूसरे टूल्स इंप्लॉय करने पड़ते हैं बनिस्बत एक उस इंप्लॉय के जिसके लिए 35,000 50,000 में बहुत फर्क है।
15,000 का फर्क है। तो एम्प्लॉय को पहचानिए, क्या चीज उसको मोटिवेट कर सकती है, वो मोटिवेशन देके उसको अपनी कंपनी के गोल से जोड़िए। और जहां तक आपको वो बात है कि जो एम्प्लॉयज एसोसिएटेड फील नहीं करते या कि मालिक अपने आप देखेगा, ऐसे लोग भी अपने आप होते हैं, उनका भी वही इलाज है। पहले तो तय कीजिए कि वो फर्नीचर है कि रसोई के बर्तन है, डू यू रियली नीड देम? बिकॉज मान के चलिए देयर आर पीपल हु डू नॉट वांट टू वर्क, वी डोंट लिव इन अ यूटोपियन वर्ल्ड। If you can motivate them to a certain level, well and good, else find better talent. Don't stay away from finding better people. You will get them. आपको वो मिले हैं, उनसे अच्छे भी मिलेंगे. Right, sir? Siddharth ji, I hope Thank this you very answers well your question, answered. sir. Yes, I think that this answers is, my question fundamentally. Yes, thank you. Thank you, So ji. next Thank you, question, I sir. request Mr. Devraj Singhal ji to please ask Yeah. this question. Yeah, I'm asking Atulji, you did a very good talk, but why these two are called epics, Ramayana and Mahabharata? I'm not able to understand yet. Okay, so epic is definitely an English version. हम उनको हिंदी में मिथक बोलते हैं या mythology बोलते हैं. So मिथक means something which cannot be, which is myth, which is मिथ्या. तो हुआ यही है कि देवराज जी, हुआ ये है कि इन कहानियों में ओवर ईयर्स बहुत चेंजेस हुए हैं, बहुत चेंजेस हुए हैं। तो अगर आप वेद व्यास की महाभारत जो ओरिजिनल लिखी गई थी, वो ऐसा कहा गया है कि उसमें सिर्फ 8,000 श्लोक थे, 8,000 श्लोक थे। और जो महाभारत आज हम पढ़ते हैं उसमें 1,00,000 श्लोक हैं। अब ये 92,000 नए श्लोक कहां से आ गए, किसने ऐड कर दिए? वो ओवर ईयर्स जैसे जैसे वो जनरेशंस को पास ऑन कर दिए गए हैं, उनमें नए एडिशंस होते गए हैं। सेम थिंग हैज हैपेंड विद रामायणा। तो उनका फैक्चुअल कोरोबोरेशन इज वेरी डिफिकल्ट। तो लोगों ने कन्वीनियंटली मिथक बोल दिया है, मिथ बोल दिया है। बट आई स्टिल सजेस्ट एवरीबॉडी दैट डोंट कॉल देम मिथ और मिथोलॉजी, कॉल देम स्पिरिचुअल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत का आध्यात्मिक इतिहास बोलिए, इनको मिथक मत बोलिए। और वही बात आती है सत्य और तथ्य की, सत्य को पकड़िए। कोई एपिक बोलता है, कोई पोएम बोलता है, हम तो बोलते हैं कि महाभारत से बड़ा स्क्रीन प्ले कोई नहीं है। कोई फिल्म बनाए तो फिल्म के कम से कम 10 सीजन बन जाएंगे। तो जैसी आपके मन की भाव है वो आपको वैसा ही दिखाई देगा, उसके पीछे का सत्य पकड़िए। I hope that answers the question, Devraj ji. Thank you. We can move forward, Gaurav ji. We still have some Next time. question we have from Mr. R.G. Dwivedi. R.G. द्विवेदी साहब जी। सर हाँ नमस्कार, मैं भोपाल से हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी जी। मेरा सिर्फ एक प्रश्न है, जो कर्म के विषय में आपने बताया कि जो आपने कल किया उसका फल आज भोग रहे हैं, जो आज करेंगे इसका फल आगे मिलेगा। तो अतुल जी, ये एक तरह का ये विश्वास है ना कि हमने कल अच्छा किया था इसलिए आज कर रहा हूँ जी। ये केवल विश्वास है कि हमने पूर्व जन्म में अच्छा किया था तो इसमें अच्छा मिल रहा है जी। तो ये एक तरह का विश्वास है, विश्वास करेंगे, ऐसे ही है ना सर? पूरा जो हमारी इंडियन हिस्ट्री पूरी विश्वास पर खड़ी है सर। इसका कोई साइंटिफिक रीजनिंग हालांकि बहुत मिल जाएगी, ढूंढने जाएंगे, लेकिन पूरा इंडियन स्पिरिचुअल हिस्ट्री आपके विश्वास, आपके प्रेम, आपके आस्था पर टिकी है। क्योंकि ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल रामकृष्ण को मानते ही नहीं किए हुए, वो सोचते तो काल्पनिक कहानियां हैं। तो होता क्या है द्विवेदी जी, मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। अंग्रेजी में एक कहावत है कि लाइफ इज टू शॉर्ट टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग ऑन योर ओन, सो लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ द अदर्स। जीवन बहुत छोटा है कि आप सब कुछ खुद अनुभव करें, इसलिए औरों के अनुभव से सीखिए। अब मेरी माँ ने कहा कि बिजली के प्लग में हाथ मत डालो, मैंने बिजली के प्लग में हाथ नहीं डाला, मैंने खुद चेक नहीं किया कि करंट आता है कि नहीं आता, क्योंकि वो मुझे पता था। अब न्यूटन ने बोला ग्रेविटी है, ग्रेविटी मैंने नहीं खोजी, मैंने ग्रेविटी मान ली क्योंकि न्यूटन ने खोज के दिया है। तो जिस बात को हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं हम उसको मान लेते हैं। तो जिन्होंने कर्म और कर्म फल को एक्सपीरियंस किया है कॉन्शियसली, वो उस पर विश्वास कर लेते हैं। जिनका एक्सपीरियंस होना बाकी है वो थोड़ा टाइम बाद विश्वास करते हैं। ऑल अ मैटर ऑफ विश्वास। आप चाहे उसको कर्म से अलग कर दीजिए, आप उसको मॉरल कंडक्ट आज का देख लीजिए, मॉरली जो काम आप ठीक करेंगे उसका आपको फल मिलना जाहिर सी बात है। आप गलत काम करेंगे उसका आपको लीगल पनिशमेंट भी मिलेगा, मॉरली भी आपका बॉयकॉट किया जाएगा। तो समय के हिसाब से उनकी परिभाषाएं बदलती रहेंगी, लेकिन ये तथ्य खड़ा हुआ है, अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा करो बुरा मिलेगा। एंड आई डोंट थिंक ये कोई समझना बहुत मुश्किल भी है। बिल्कुल आपके विश्वास की बात है द्विवेदी जी। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू महाराज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Now I have a one question. If you Gaurav want, ji. I can ask the question, right? जी। So my question is something different. In most of the organization, we have seen and feel like that there's a lack of ownership between the employees. That's a very valid concern as nowadays, because people are take everything for granted. They do not
take the ownership of the task? How to Yeah. motivate them to accept the ownership of a specific task being given to them? सर गौरव जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसमें हमको समझना है कि हमको उस बात को, उस केस को किसके पर्सपेक्टिव से देखना है। ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चला है कि ओनर बोलते हैं कि एम्प्लॉयज मोटिवेटेड नहीं है, एम्प्लॉयज बोलते हैं कि ओनर मोटिवेशन देता नहीं है, दे लुक डाउन एट अस। ये बहुत अच्छा कॉन्फ्लिक्ट है धृतराष्ट्र और विदुर का। इसमें आप विदुर भी हो सकते हैं, धृतराष्ट्र भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। विदुर हमेशा समझाता रहा और धृतराष्ट्र बोलता रहा कि तुमने कभी कुरु वंश की ओनरशिप ली ही नहीं, तुम हमेशा गलत बात करते हो, उल्टी बात करते हो, जो बात मुझे पसंद नहीं है वो कहते हो। कभी तो कुरुवंश का भी सोचो, कभी तो दुर्योधन का भी सोचो। तो गौरव जी, इसमें सबसे पहले जो आपको काम करना है, बुरा जो देखा मैं चला बुरा ना मिलिया कोई वाली बात है। पहले आप देखिए कि क्या आपने एम्प्लॉयज को ओनरशिप फील कराने के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दिया है। उसके लिए आपको अपनी पॉलिसीज को एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है, अपने आप को अलग करना होता है अपनी पॉलिसीज से। एंड हमेशा बोले कि आज मेरा काम है अपनी पॉलिसीज में फॉल्ट फाइंडिंग करनी है, मुझे कमियां निकालनी है। ये बड़ा मुश्किल काम होता है सर। मैं लेखक हूं, मैं कोई भी लिख देता हूं कहानी, तो मुझको कहानी बहुत अच्छी लगती है, ये तो बेस्ट कहानी है, पर हमको बैठना पड़ता है कि आज मुझे इस कहानी में 5 कमियां निकालनी है। ट्राई टू फाइंड 3 प्रॉब्लम्स इन योर पॉलिसीज, वो आपको मिल जाएंगी, उनको जरूर मिलेंगी, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट। अपना काम पूरा करके रखिए। अपना काम मोटिवेशन देना है, उनको एसोसिएशन फील कराना है, इंसेंटिव देना है, क्रेडिट देना है, एक्नॉलेजमेंट देना है, उसमें आप कमी मत छोड़िए। फिर आपको छोड़ना पड़ेगा एम्प्लॉय की साइड। एटलीस्ट यू विल बी सेटिस्फाइड कि हमने अपना काम पूरा किया है। अब इसके बाद एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है अपना पार्ट करने की। तो यू कैन बी विदुर, यू कैन टेल द राइट थिंग टू द एम्प्लॉयज। अगर वो धृतराष्ट्र हैं, वो अपना पतन खुद करवाएंगे, बात को समझ आ जाएगी, तो वो कंपनी के साथ आगे बढ़ेंगे। बट फाइंड फॉल्ट इन योर सेल्फ, उसको इंप्रूव कीजिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। गौरव जी, Got it. Thank And there's you, one Ji. more Thank question in the chat. Do you think a good leader should have been a good follower once? दोबारा बताएं सर। Do you think a good leader should have been a good follower once? 100% सर, 100%। यू हैव टू बी ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल फर्स्ट। पहले आपको उस टेबल की इस तरफ आना पड़ेगा, तब जाके आप टेबल के उस तरफ आ पाएंगे। किसी की भी आप कहानी लीजिए, सबने पहले ज्ञान लिया, शिष्य बने, उसके बाद लीडरशिप पोजीशन में आए। तो फर्स्ट बी अ गुड टीम मेंबर, अ गुड टीम प्लेयर, अ गुड फॉलोअर, एंड देन go on to become a good leader. I think so. We'll take a few last question. One Ji. more question from Siddharth Singhal. Siddharth, you can please ask the question, and then we'll take one more question. Thank you, Gaurav. Thank you for giving me the privilege to ask the second one. I just wanted to ask a very problematic condition that many of us face in MSMEs is we train employees and then they leave. We give them blood, sweat, energy, experience, even training. And by the time they are able to contribute to the company, to the MSME, they simply leave. They get probably an opportunity or whatever. So I just wanted to know what are your thoughts? किस तरह से हम लोग talent को retain कर सकते हैं अपनी companies में? बहुत अच्छा सवाल किया है जी, बहुत अच्छा। और ये तो ग्लोबल प्रॉब्लम है, हम लोग भी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। उसमें सर जो कृष्णा कहते हैं, या जो महाभारत कहते हैं, या जो गीता कहती है, वो बहुत सिंपल सी बात है। आप नोट कर लीजिए, गीता का चैप्टर 2 श्लोक नंबर 27 आप पढ़िए, चैप्टर 3 श्लोक नंबर 62 63 आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेरी सिंपल श्लोक, जिसका इन इंग्लिश नटशेल ये है, ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल एंड डू नॉट ट्राई टू थिंग्स विच यू कंट्रोल थिंग्स विच यू कैन नॉट कंट्रोल। Our half of the problem, Siddharth ji, come when we try to control things which I cannot control. Now Krishna says you cannot control the phal, you can control the karma. Karmanyevadhikaraste ma phaleshu kadachana ma karm phal heturbur mate sangotsva karmani. This is chapter number 2 श्लोक नंबर 47। उसके बाद वो चैप्टर 3 में आते हैं, श्लोक 62 63। ही सेज ध्यायतो विषयन पुंसा संगास्तेषु पजायते संगात संजते कामा कामात क्रोधो भजियते क्रोधात भवति सम्मोहन सम्मोहात स्मृति विभ्रमम स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। बहुत सिंपल मतलब है, कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। नाउ दैट डज नॉट मीन कि ऑब्जेक्टिवलेस काम करो। Krishna says when you focus too much on the result, you stop enjoying the process. Your process is giving them the best training.
Your process is training them for the best output. You are focusing too much on the result. कि रुक जाएं, किसी ना रुक जाएं. That is not in your control. Because he says, when you focus too much on the result, ध्यायतो विषयं पुंसः संगस्तेषु पजायते. इच्छा की उत्पत्ति होती है, इच्छा बदलती है काम में, लस्ट बदलती है क्रोध में, फिर वो निकल जाते हैं, आपको गुस्सा आता है तो क्या होता है, क्रोधात भवति सम्मोहन, मेमोरी गेट्स क्लाउडेड, सम्मोहात स्मृति विभ्रमम, उस क्लाउडीनेस मेमोरी से आपकी स्मृति जाती है बुद्धिनाश, इंटेलेक्ट का लॉस होता है, इंटेलेक्ट का लॉस होते ही प्रणश्यते, आपकी एग्जिस्टेंस का लॉस हो जाता है. कृष्ण हैज गिवन यू द होल लाइन, इच्छा, काम, क्रोध, उसके बाद क्लाउडेड मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ एग्जिस्टेंस. सो ऑलवेज टेल योरसेल्फ एंड योर टीम ऑफ ट्रेनर्स, फोकस ऑन व्हाट इज इन योर कंट्रोल. आपके कंट्रोल में बेस्ट ट्रेनिंग देना. हैव फेथ इन योर ट्रेनिंग, हैव फेथ इन योर कॉर्पोरेट पॉलिसीज. If still they are leaving, it was not in your control. They were not meant to be with you, Gaurav ji, Siddharth ji. So focus double on things which are in your control and leave things which are not in your control. उनको उनके ऊपर छोड़ दीजिए. Have faith. कृष्णा अकेले तो आए थे पांडवों के साथ लड़ने के लिए. सेना तो दुर्योधन ले गया था. कृष्णा को विश्वास था मेरे पीछे आएंगे. अर्जुन had the option of not going with Krishna. So इस चॉइस का जो चक्कर होता है ना सिद्धार्थ जी, चॉइस इज नेवर बिटवीन गुड और बैड. चॉइस इज ऑलवेज बिटवीन लेस बैड एंड मोर बैड. इफ इट इज गुड एंड बैड, यू नो व्हाट इज गुड, यू विल गो फॉर गुड. तो कृष्णा जो स्ट्रगल आप फेस कर रहे हैं, वो स्ट्रगल कृष्णा ने थ्रू आउट फेस किया. इट वॉज ऑलवेज द चॉइस बिटवीन लेस बैड एंड मोर बैड. तो नथिंग इज इन योर कंट्रोल. आप गांधी जी का एग्जाम्पल लीजिए कि गांधी जी की मैं आपको बात करूं, गांधी जी को औरों को कंट्रोल में करने के लिए और उससे जो उनके कंट्रोल में नहीं थे, उन्होंने क्या किया कि मैं फास्टिंग अनटू डेथ, मैं जब तक नहीं मर जाऊंगा मैं भूखा रहूंगा अगर मेरी बात मानी नहीं गई. If you look at Krishna's philosophy, that means it is equivalent to putting a gun on somebody's head. I will kill you if you don't listen to me. Rather than killing you, I will kill myself. So ultimately, I will take one life if my thing is not heard. So again, trying to control things which are not in your control. So my suggestion to you is focus 100% more than that on things which you can control, which is your training process, its quality, your trainers, and then leave everything to your phala. Karma kijiye, bas. That's it, sir. I think so perfectly. Also, we can also take advantage of the situation. Such people who go out, leave your organization, become your ambassadors, and it is an advertisement for yourself. 100%, sir. There's something good out of everything. Something good out of everything. You just have to keep focusing on your karma. So Atul ji, would like to take one last question. Yes, Gaurav ji, because from the audience, Aarti Suji. So how to manage employees who feel they are better than their bosses? I would like to add one more thing. Some of us are from family business, probably 2 and 3 generations are in family business. It happens in the old employees. It's really hard to tackle an old employee which has been joined with the organization for the last 30 or 40 years, even prior joining us. So how to manage these situations as well? ये तो बहुत ही रिलेटेबल चीज है सर. पितामह भीष्म और दुर्योधन का कॉन्फ्लिक्ट. पितामह कह रहे थे कि मैं पांडवों को नहीं मारूंगा, दुर्योधन कह रहा है कि मैं पांडवों को मारूंगा, आपको मारना पड़ेगा. सर देखिए, आज के समय में गौरव जी क्या हो गया, जनरेशन गैप बहुत छोटा रह गया है. एक टाइम था जब जनरेशन हर 10 साल में बदलती थी, हर 20 साल में. अब जनरेशन चेंज हो रही है 3 साल में. मतलब हमसे 3 साल छोटा लड़का क्या बोल रहा है हमको समझ ही नहीं आता. ये कौन सा एप्लीकेशन है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, और हमसे 5 साल बड़े लोग को हमारी बात समझ नहीं आती. तो जनरेशन गैप को ब्रिज करना 2-वे प्रोसेस है. यहां से भी काम होना पड़ेगा, वहां से भी काम होना पड़ेगा. बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड, स्पेशली वी आर फ्रॉम दैट जनरेशन व्हेन देयर वाज नो फोन, then the phone came, then the smartphone came, then social media came. Our parents belong to the other generation, only no phone. Our younger generation is phone with everything. We are the bridge, especially you and me, people in the 30s. We have to play a more, pivotal role, more central role in that. But again, I would say कि पितामह भीष्म के पास अपने कन्विक्शन थे, दुर्योधन के पास अपने कन्विक्शन थे. आप ये उम्मीद मत कीजिए कि जो ओल्डर जनरेशन या आपसे प्रीवियस जनरेशन है वो आपको ऑटोमेटिकली लाइक कर लेगी. The resistance to your idea is very natural. Don't argue on the resistance, argue on the idea. Make them feel the importance of the idea necessary for the company. Always fight on merit, sir. Fight on merit. अगर उनको आइडिया आप समझा पा रहे हैं, they will accept. अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो या तो आइडिया में प्रॉब्लम है, या you will be at least be sure कि ये मेरी बात कभी नहीं मानेगा. Then you can deal the other way around.
but first be very sure that your idea is the best idea. अगर कोई और होता तो मान जाता. Don't jump to the conclusions. It happens very time. Idea उनको strike करता है, समझ में आता है, but जो implementation का process है ना, उसको नहीं करना चाहते. तो सर वो धृतराष्ट्र हैं, वो धृतराष्ट्र हैं. आप विदुर बन के अपना काम करते रहिए सर. कृष्ण आपके घर आके साग खा के जाएंगे, उसे घर के मिठाई नहीं खाएंगे. Don't worry. अपना काम करते रहिए. I think so. It's fair enough. And Thank you, sir. Thank you. All many people who have joined us late or missed the part of the session, this entire webinar or this entire episode would be available on MMA YouTube channel. You can subscribe to the YouTube channels. All the meetings that we do at MMA are available on YouTube. And with this, I would like to thank and also request our past president, Mr. Ankur Jaggi, to kindly present the vote of thanks to all the audience and our learned speaker, Mr. Atul Satyakaushik ji. Ankur, are you with us? Yes. Thank you, Gaurav. Atul ji, thank you so much. बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग टॉक थी, कुछ इस वजह से कि आपका कंटेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और कुछ मुझे बार बार ये डर लग रहा था कि कब अटेंडेंस कॉल आ जाएगी, आप सबका नाम ले लेकर यू आर एड्रेसिंग पीपल. तो बट अदरवाइज लेट मी टेल यू दैट महाभारत और रामायण हम लोगों के यहाँ सिर्फ एक टीवी सीरियल है या एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या मेरे साथ के और व्यूअर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है. बट वी आर ऑल so glad and so thankful to you that you have given all this episode or epic or spiritual history episode that we call it, उसको आपने एक objective discussion का point दे दिया है हमें. As most of the people said, Siddharth said and Gaurav said कि MSMEs has been facing a lot of problems in terms of daily management. I am sure that most of us would benefit from it, and mixing our own point of views of Ramayana and Mahabharata and learning from what you just told us in this wonderful session. I am sure there is lot is to be taken home from this session, and I mean certain things are beyond words. जिस तरह से आपने बोला, जिस तरह से engage करके रखा, वो आपको तो शायद वो चर्चिल वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी. 1.5-2 घंटा बोलना हो तो भी अभी तैयार है, 5 मिनट बोलना हो तो भी अभी तैयार है. It was such a nice session. Thank you, sir. Thank you. Many thanks to you, sir, on behalf of Meerut Management Association. We also thank Manish ji. It is because of him that we are seeing you, we are listening to you. Thank you. Thank you so much, Ankur. Manish ji, आपको तो special vote of thanks है sir, because you only suggested this talk and so certainly thank you so much अतुल जी. आज आपने बिल्कुल एकदम नए तरीके से आपने सारा का सारा पेश करा, और so many new things we were able to get out of the whole event and session. और मतलब कई चीजें तो बिल्कुल सोची भी नहीं थी कि ऐसे इस तरह रिलेट कर सकते हैं हम विद महाभारत एंड रामायण. बट ऑल थैंक्स टू यू, आपकी नॉलेज, आपका विजडम और आपका बताने का तरीका. एंड थैंक यू सो मच गौरव एंड अंकुर फॉर कंडक्टिंग द सेशन सो वेल. आप दोनों ने बहुत ही अच्छा ऐसे टू गेट अप एंड kept the flow going. बहुत अच्छा. And I would like to thank everybody because सबने बहुत अच्छा इसमें participate करा. And yes, I think the viewers are to be given a special thanks. People who took out time to attend this wonderful talk. बिल्कुल. तो वो बहुत बढ़िया. और अतुल जी, we really look forward to more such sessions with you. Always with you, sir. Always with you. Always with you. जब भी सुजाता जी लेकर आ रही हैं 20 सितंबर को a very interesting session on iconic women of Ramayana. तो जितने लोग भी सुन रहे हैं वो प्लीज ज्वाइन करें. सुजाता जी आप तक खबर पहुंचा दें. बहुत अच्छा सेशन होने वाला है. Looking forward to it, Atul ji. Sujata ji is organizing this, and I am Rima's sister. I am living in Kuala Lumpur. Wow. I've been listening to. This is the 4th session I am attending, and actually got hooked on to your talks. Thank you ji. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you for joining in. Thank you. And thank you Atul ji once again from the. Thank you Gaurav ji. Thank you so much. Thank you. Really pleasure to have you with us. Thank you once again. Thank you. Have a good day. Bye everyone.